पोर्टल ओपन करूँ. ठीक आहे, ओपन केलं. तर तुझं सोडते काय करू. हेलो. हुआ. यूट्यूब पर भेज दो मुझे. ओके. ॲपका चॅट ओपन. या अच्छा. वेबसाइट का डाला जो वेबसाइट पे अपने इंग्लिश में भी सर विकास नाम है का. बस. तो आज को करना है. तो आने का इंतजाम आया हुआ है. तो आप नेक्स्ट. So okay, so good evening. So today we will be starting our UPSC integrated batch, and it will be prelims plus mains plus interview batch where I will be guiding you throughout all your stages. And so it will be purely English medium batch, though we will speak little bit in Hindi, but our batch will be mostly focused on English. And this like 9th March, from when we'll be starting the core subjects. But first 3-4 days I will be taking your orientation lectures, the demo lectures, and I will be discussing entire syllabus. So welcome to the platform of UPSC Guide. I am Akshay Kadam, and I will just introduce myself. So I am academic director at UPSC Guide. I've been teaching for UPSC for last 10-11 years, and also most of the faculties that we have here, the core faculties, okay, Jawad Kazi sir, Sumit Konde sir, then Shingade sir, all of them have more than 10-11 years of experience. Okay, so none of our faculty is any guy who is a fresher or just given 3-4 attempts, or those who have started recently teaching. All are very qualified and experienced faculties that we have here. So today, guys, I will be discussing the insight on strategy to clear UPSC CSE exam. So basically today I will just give you the overview of UPSC syllabus, and then some very important points that you should know before starting your journey of UPSC. So basically, now as we begin, so in this first lecture, I will just tell you the syllabus, but more important than that, we will discuss that what this syllabus or this exam expects from you, what this exam demands from you. So basically, why UPSC changed syllabus in 2013, जो पुराना syllabus था, नया syllabus, what changes have been made and why those changes were made, ये part I will be discussing with you. अब when you will be preparing guys, तो आज का जो लेक्चर है, ये फर्स्ट लेक्चर, ओरिएंटेशन लेक्चर, यू विल रियलाइज एज आप प्रिपेयर करते जाओगे, आप एग्जाम दोगे, फिर आप फेल होते हो, फिर से अटेम्प्ट देते हो, या पोस्ट भी निकलती है. बट व्हेन दैट विल हैपन, यू विल रियलाइज कि मोस्ट ऑफ द, ये जो लेक्चर आज मैंने पढ़ाया, दिस इज एक्चुअली, यू विल रियलाइज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट क्रूशियल लेक्चर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एज वी बिगिन, मैं ये अज्यूम करके लेक्चर ले रहा हूं क्योंकि मोस्ट ऑफ द लेक्चर स्टूडेंट जो ऑनलाइन भी है, कि जिन्होंने ऑलरेडी कहीं पे क्लास किया है या बेसिक क्रैश कोर्सेज वगैरह किए हैं, या कुछ ने सेल्फ स्टडी किया हो, या कुछ टोटली फ्रेशर स्टूडेंट्स होंगे. सो आई विल स्टार्ट विद दैट एंगल कि आपको कुछ भी पता नहीं है यूपीएससी के बारे में, यू हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया, एंड आई विल बी स्टार्ट टीचिंग एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच, लाइक सारा सिलेबस डिस्कशन से लेके. So as we all know, UPSC में you have prelims exam, then mains exam, and then you have the interview stage. A prelim में you have
two papers. So paper 1 general studies paper and paper 2 CSAT का paper, general studies paper 2. GS paper 1 200 which is scoring paper, while आपका CSAT जो है इज अ क्वालिफाइंग, आपको सिर्फ 66% मार्क लाने हैं CSAT में. उसका सिलेबस क्या, माइन्यूट डिस्कशन, ये जो 4 तारीख को लेक्चर होगा, देयर आई विल डिस्कस द ईच एंड एवरी टॉपिक. तो अभी सिर्फ सिलेबस के पेपर देख लेना. अब इसमें जो ओल्ड सिलेबस दैट यूपीएससी हैड, वो ओल्ड सिलेबस में यूपीएससी के जस्ट अंडरस्टैंड, क्योंकि जब आगे का पॉइंट दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन व्हाई यूपीएससी चेंज सिलेबस, इट विल हेल्प यू. CSAT पेपर वाजंट देयर. There used to be optional paper. So you have GS paper and you had the optional paper. अब उसमें ये जो पेपर है GS पेपर 2 क्वालिफाइंग, आपको 66 मार्क्स लाने हैं आउट ऑफ 200. GS पेपर 1 इज स्कोरिंग. लेकिन ये दोनों पेपर प्रीलियम के आर पेपर दैट आर नॉट गोइंग टू डिसाइड योर सिलेक्शन. सिलेक्शन में आपके मेंस के मार्क गेट्स काउंटेड. दीज आर ओनली फिल्टरिंग पेपर. If you qualify for GS paper 2, you will be able to give GS paper 1. उसके मार्क्स और पेपर विल गेट इवेल्युएटेड, और अगर कट ऑफ के ऊपर हो यू विल राइट द एग्जाम. लेकिन कट ऑफ के ऊपर आप कितने मार्क्स से हो, अगर कट ऑफ 100 का है और आपको 100 मार्क आ गए या आपको 130 मार्क आ गए, इट्स नॉट गोइंग टू डिसाइड योर सिलेक्शन. प्रीलियम सिर्फ फिल्टर है, वो इतना ही डिसाइड करेगा वेदर यू विल राइट मेंस एग्जाम और यू विल नॉट राइट मेंस एग्जाम. एंड देन आपके मेंस एग्जाम के मार्क्स दे एक्चुअली गेट काउंटेड फॉर योर फाइनल सिलेक्शन अलॉन्ग विथ इंटरव्यू के मार्क्स. सो मेंस एग्जाम जो है आपकी, उसमें पहले 2 पेपर है क्वालिफाइंग, एक लैंग्वेज पेपर, एक इंग्लिश लैंग्वेज पेपर, और एक आपका कोई भी लोकल लैंग्वेज. सो यू आर महाराष्ट्रियन, देन यू कैन टेक मराठी लैंग्वेज, और कोई भी आपके स्टेट के हिसाब से यू कैन टेक द लैंग्वेज. सो बोथ दिस पेपर, लैंग्वेज पेपर्स आर क्वालिफाइंग अगेन. You have to get around 85 marks to qualify. लेकिन याद रखना guys, most of you who are preparing for UPSC in English, obviously you are choosing English language, means you will be having good command over English language. So you will not, or you will never fail to qualify English paper. But most of the students I have seen, they fail to qualify the language paper. Even most of the Maharashtrian students giving Marathi paper, even they fail in Marathi paper sometimes. Because after 10th, 11th, 12th, throughout आपका इंजीनियरिंग या कोई भी ग्रेजुएशन हो, इफ यू हैव स्टडीड इन इंग्लिश मीडियम, या पहले से यू हैव सेमी इंग्लिश और फुल्ली इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट यू आर, देन लैंग्वेज पेपर यू नीड टू डू सीरियसली. अब उसके बाद यू हैव दीज 7 पेपर्स हुज मार्क्स विल एक्चुअली गेट काउंटेड. तो आपका एसे पेपर यू हैव 250 मार्क्स. देन GS 1 2 3 4, एक हिस्ट्री ज्योग्राफी का पेपर एंड इंडियन सोसाइटी, पॉलिटी गवर्नेंस इंटरनेशनल रिलेशन सेकेंड पेपर, इकोनॉमी साइंस एंड टेक, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट एटसेट्रा, जनरल स्टडीज पेपर 3 व्हाट वी कॉल, एंड GS पेपर 4 इथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड. अब ये जो सारे पेपर है 250 मार्क्स, सो ऑल टुगेदर 1250 मार्क्स, एंड देन कम्स योर ऑप्शनल पेपर 250 मार्क. सो टोटल 1750 मार्क, 1750 मार्क. और इसमें इवन इफ यू गेट 50% मार्क्स राइट रिटर्न पेपर में, यू विल टॉप द ऑल इंडिया एग्जाम. क्योंकि टीना डाबी वाज द टॉपर, शी गॉट समवेयर अराउंड 51% मार्क. ओके, जस्ट समहाउ लाइक उसको भी हाफ मार्क्स की एज थी. सो आउट ऑफ 1715 आपको 50% भी मार्क मिलते हैं, दैट इज द टॉपर स्कोर. सो माई पॉइंट इज, दिस इज अ रिटर्न एग्जाम, एंड रिटर्न एग्जाम में स्कोरिंग हाफ इज इवन अ बिग डील. तो आपको 20 मार्कर भी क्वेश्चन आता है, तो उसमें 10-11 भी मार्क आपको आ गए, दैट्स बिग डील. अब उसमें आई विल डिस्कस सेपरेटली एसे पेपर, इथिक्स पेपर, ऑप्शनल पेपर, सबका सिग्निफिकेंस आई विल डिस्कस. उससे पहले एक चीज याद रखना, बिकॉज वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस स्ट्रैटेजी. सो स्ट्रैटेजी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है गाइस कि यूपीएससी स्ट्रैटेजी में मोस्ट इंपॉर्टेंट ये 3 पेपर है मेंस एग्जाम में. ऑब्वियसली प्रीलियम अज्यूम करो आपने फिल्टर पास कर लिया, सीसैट क्वालिफाई कर गए, GS पेपर 1 प्रीलियम के यू हैड गुड मार्क्स एंड यू आर राइटिंग मेंस. तो मेंस में यू विल रियलाइज कि GS 1 2 3 पेपर जो है ना, हार्डली स्टूडेंट्स गेट, कि 100 के ऊपर हार्डली किसी को मार्क आते हैं. बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स स्कोर हाई इन इथिक्स पेपर, एसे पेपर एंड
ऑप्शनल पेपर। इन तीनों पेपर में आराम से 140 150 मार्क आते हैं, 140 150। एंड ऑप्शनल में भी जो दो पेपर है कंबाइंड, दोनों पेपर में यू कैन स्कोर अप टू 300। तो मेंस में दैट्स व्हाई दीज थ्री पेपर आर ट्रिनिटी ऑफ योर यूपीएससी प्रिपरेशन, याद रखना। एंड दैट्स व्हाई ये जो तीन पेपर है, जीएस एसए, जीएस पेपर 4 एंड ऑप्शनल 1 and 2, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर्स, क्योंकि ये पेपर में यू कैन स्कोर अप टू 150 140। जीएस 1 2 3 जो है ना, दे आर सो वास्ट, उसमें बहुत ज्यादा सिलेबस है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, गवर्नेंस, आईआर, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, सिक्योरिटी एक्सेट्रा। उसमें 100 मार्क्स पाना आउट ऑफ 250, इवन स्कोरिंग 100 इज अ बिग डील। तो इन तीन पेपर में यू हैव टू कीप योर स्कोर अराउंड 100। एंड एसे एंड ऑप्शनल पेपर इथिक्स में यू हैव टू एंश्योर योर स्कोर इज अबोव 140 150 के रेंज में। Just give me a second. I guess I hope streaming is going properly. Just give me a second. Okay, so sorry for interruption. So as I was telling, GS 1 2 3 में आप 250 में से 100 भी मार्क्स लेके आए, दैट्स अ बिग डील। अब ये जो पॉइंट है ना कि एसे, इथिक्स एंड ऑप्शनल पेपर, दैट्स व्हाई दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फाइनल सिलेक्शन मेंस में एंड इंटरव्यू में भी। इफ यू वांट टू गो टू द इंटरव्यू स्टेज, तो इन तीनों में 150 मार्क्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब व्हाट आई वाज टेलिंग यू, उसका जस्ट एविडेंस टू शो यू। अभी देखना एसे के पेपर में ये स्टूडेंट को मार्क्स कितने हैं, जस्ट 10 मार्क्स। अब याद रखना, इवन इन एसे पेपर दे गिव सच अ लो मार्क्स। अब सेम स्टूडेंट हिंदी पेपर में ही हैज 161 मार्क्स, इंग्लिश पेपर में 127 मार्क्स, और इवन जीएस 1 में उसको 85 मार्क्स है। दैट मींस ही हैज गुड कमांड ओवर अदर सब्जेक्ट्स। फिर भी एसे में यू गॉट ओनली 10 मार्क्स। बट I just wanted to show you कि not to take essay paper, ethics, optional paper lightly. अब इसमें देखना कि this is the recommended candidate. Recommended candidate means he has cracked interview, got selected in the service. ये mark list selected candidate की, and later on when I will discuss all these papers separately, I will show you all the इसके mark list बहुत सारे students के। अब essay में देखना मार्क्स कितने, 135। GS 1 2 3 89 89 87, ethics 129, and then history optional paper 141 130, and personality test 145. So he has scored very high in essay, ethics and optional, but GS 1 2 3 में 89 89 87. Then दूसरा एक कैंडिडेट, he is also recommended 994 overall marks, means he must be having very high score. अब इसमें देखना essay paper 133 मार्क्स, देन जनरल स्टडीज पेपर 1 2 3 में 97 86 75, एंड देन आपका जीएस पेपर 4 129 मार्क्स। तो देखना इथिक्स एसे में 135, इथिक्स में 129, हिस्ट्री ऑप्शनल में भी सॉरी एसे 133, इथिक्स में 132, जीएस 1 2 3 97 86 75, एंड मैथमेटिक्स ऑप्शनल था 133 138। सो क्लियरली जीएस 1 2 3 में hardly even toppers could not cross beyond 300 marks या 100 इंडिविजुअली। ये भी कैंडिडेट सिलेक्टेड है, रिकमेंडेड 1014, मींस इसका रैंक जो है इज वेरी गुड रैंक, पहले टॉप 50 में रैंक होगा। तो जो टॉप 50 में आ रहे हैं उनके भी मार्क्स यू जस्ट चेक, एसे 135, देन जीएस 1 2 3 देखना 101 90 81, देन इथिक्स पेपर 138, ओके, एंड ऑप्शनल में देखना 138 141। मोस्ट ऑफ द टॉपर्स एंश्योर एसे, इथिक्स एंड ऑप्शनल में 140 तक मार्क्स लेके जाना, एंड दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू दीज थ्री पेपर्स आर
ट्रिनिटी ऑफ योर प्रिपरेशन एसे, इथिक्स एंड ऑप्शनल मेंस में। ये भी और एक मार्क लिस्ट देखना, रिकमेंडेड कैंडिडेट 925 मार्क्स, एसे का पेपर देखना 129 मार्क्स, जीएस 1 2 3 99 93 83 72, इथिक्स 123 मार्क्स, एंड देन आपका ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी 110 111 मार्क्स। ओके, और यहां पे कम मार्क आ गए ऑप्शनल में, बट यहां पे अगर बहुत ज्यादा मार्क होते सो एक 50-50 एक्स्ट्रा, तो 925 के जगह पे ही वुड हैव गॉट 975,000 तक मार्क्स, एंड ही वुड हैव गॉट टॉप 100 में पोस्ट, आईएएस की पोस्ट फॉर श्योर। सो बेसिकली देन my first point that I wanted to tell you कि as you start your preparation journey, so one thing you need to know कि whenever you are giving the prelims exam, make sure कि prelim is only, as I told you, filter exam, prelims से आगे, okay, you will उसके marks count नहीं होने वाले आपके mains में। what gets counted in mains के mark, they matter in your final selection। और लेकिन guys, अगर आप if you see last year के यूपीएससी के prelims के पेपर, they are very tough, and later on as we discuss strategy you will realize cracking mains is much easier than cracking the prelims exam, क्योंकि आपके prelim में okay, कितना वास्ट सिलेबस है, उसमें से 100 क्वेश्चन कहीं से भी आएंगे, सो प्रेडिक्टिंग दैट इज वेरी डिफिकल्ट कि कौन से 100 क्वेश्चन आएंगे, दैट्स रियली टफ टास्क। उसके लिए बहुत सारी स्ट्रेटेजीज है हाउ टू डील अबाउट प्रीलिम्स, दैट आई विल डिस्कस सेपरेटली। बट मेंस जो है ना इज वेरी स्टैटिक पार्ट। एसे आई टोल्ड यू, यू स्कोर 150 140 सिलेक्शन गारंटीड है, और एसे पूरा स्टैटिक पार्ट है। हाउ टू राइट एसे, व्हाट टू राइट इन एन एसे, इट्स वेरी बेसिक। सो एसे राइटिंग इज अ स्किल, वो चेंज नहीं होगा। वंस यू नो हाउ टू राइट गुड एसे, यू विल ऑलवेज राइट गुड एसे। सेम इथिक्स का पेपर इज जस्ट वन पेपर, यू कैन स्टडी इट वेल, एंड आपको वो पेपर का कंटेंट चेंज नहीं होता, सो दैट इज स्टैटिक पेपर। तो अगेन 250 मार्क का वो पेपर, इफ यू डू इट वेल, इथिक्स में यू कैन स्कोर वेरी गुड। एंड देन उसके बाद आपके ऑप्शनल पेपर, तो ग्रेट एक्सटेंट ऑप्शनल पेपर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, जो भी आपका ऑप्शनल हो, अगेन इट्स अ स्टैटिक पार्ट। दैट्स व्हाई स्टूडेंट्स स्कोर 140 150 इन दोज पेपर्स। और अगर वहां पे आपने ये इंश्योर कर लिया 140 150 इन एसे, 140 150 इन इथिक्स, 140 150 दोनों ऑप्शनल पेपर में, आपका इंटरव्यू का कॉल इज 100% गारंटीड। और जीएस 1 2 3 में एवरेज परफॉर्म करना है। लेकिन इफ यू हैव ऑलरेडी क्रैक प्रीलियम, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विद करंट का प्रिपरेशन, वो जीएस 1 2 3 का जो करंट का पार्ट है, इंडियन सोसाइटी का वगैरह, दे मैनेज टू स्कोर जीएस 1 2 3 में अराउंड 100 मार्क्स, एंड दे गेट द इंटरव्यू का कॉल। सो पहली चीज याद रखो एज यू बिगिन योर प्रिपरेशन, दैट्स व्हाई कि नेवर एवर फेल इन मेंस एग्जाम। अगर मेंस फेल होती है ना आपकी, देन लिटरली आई एम टेलिंग यू, नो वन इज डम्बर और डम्बेस्ट लाइक यू। क्योंकि गाइज नेक्स्ट टाइम फिर से प्रीलियम का चांस आपको मिले या ना मिले, देयर इज नो गारंटी। सो योर प्रिपरेशन का पहला स्ट्रेटेजी दैट आई वांटेड टू टेल यू शुड बी कि भाई मेरी प्रीलियम कौन सी निकले, ये साल निकले, अगले साल निकले, मेरे 4th अटेम्प्ट पे निकले, 3rd अटेम्प्ट में निकले, लेकिन जिस भी साल आपकी प्रीलियम निकलती है ना, यू शुड बी हैविंग सो मच ऑफ कमांड ओवर मेंस कि आपकी मेंस रहनी ही नहीं चाहिए। इट शुड नेवर, यू शुड नेवर फेल इन मेंस। Okay, you should be ready for mains before the prelims exam, and that's why आप prelim और उसमें भी यूपीएससी के prelims और mains में सिर्फ 2.5 महीने का टाइम है, और वो 2.5 महीने में okay, between prelims to mains you will not be getting chance कि ऐसे ठीक से पढ़ लो, ethics ठीक से पढ़ लो, ऑप्शनल ठीक से पढ़ लो, एंड उसके आंसर राइटिंग करो। That is not possible। इसलिए बिफोर यू गिव द प्रीलिम्स एग्जाम, यू शुड बी हैविंग वेरी स्ट्रॉन्ग कमांड ओवर द मेंस। ओके, तो अगर प्रीलियम निकलती है ना, तो यू शुड बी हैविंग सो मच ऑफ कॉन्फिडेंस कि फॉर एग्जांपल अभी इस साल 31 मई को जो प्रीलियम है, अगर 31 मई को प्रीलियम देके 1 जून को भी इफ समवन आस्क यू टू अपीयर फॉर मेंस एग्जाम, यू शुड बी हैविंग सो मच ऑफ कमांड कि मेरी प्रीलियम मेंस निकलेगी ही निकलेगी, एंड दैट शुड बी योर फर्स्ट स्ट्रैटेजी। ओके, बिकॉज गाइज प्रीलियम आपकी नेक्स्ट टाइम फिर से निकले ना निकले, इट्स वेरी अनसर्टन थिंग, क्योंकि बहुत करंट अफेयर आता है। उस साल अगर आपने करंट अफेयर नहीं किया वो ठीक से, ओके, या यू आर नॉट इन द फ्लो, या बहुत सारी फैक्चुअल है प्रीलियम, बहुत सारे फैक्ट्स अपने रिवाइज नहीं किए, यू माइट इवन एंड अप इन अ फेलिंग प्रीलिम्स एग्जाम।
और बहुत सारे लाइक माई वाइफ, शी इज ऑल्सो इन सिविल सर्विस, शी इज अ डीसीपी इन पुणे ओनली, ऑल इंडिया रैंक 190 शी सिक्योर्ड. अब माई वाइफ इफ शी अगेन गिव्स द मेंस का एग्जाम ना, या टीना डाबी हो, सृष्टि देशमुख हो, कोई भी, ऑल दिस टॉपर्स, if they give the mains exam again na, they will 100% crack it because they know how to write good essay. Ethics का थोड़ा बहुत रिवाइज करो, they will be able to write good ethics. GS का static part रिवाइज करो, they will be able to write very good answers. Optional थोड़ा बहुत रिवाइज करो, सारा optional static है, they will be able to crack optional very easily. But ये सारे लोग फिर से prelim भी देना, there is no guarantee whether they will crack prelim or not because prelim is very, as I told you, uncertain exam. Okay, क्योंकि करंट बेस्ड काफी है. सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट गाइस, फिर बहुत बार ऐसे होता है ना, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आई हैव सीन कि उन्हें मेंस 2 बार क्रैक किए, इंटरव्यू को गए 2-3 बार, अब बहुत अच्छी प्रिपरेशन हुई है एंड लास्ट अटेम्प्ट में या 5th अटेम्प्ट में 6th अटेम्प्ट में दे फेल टू क्लियर द प्रीलिम्स. If you don't want that, so make sure whenever you will write the mains exam, you should be ready for mains before prelims. Prelim निकली ना तो उस साल मेंस आपका निकलना ही चाहिए. One shot मेंस लिखने का, and that should be your final attempt. Now while preparing this then, so mostly the subject that I am going to teach you are mains based. So last 10 years I have been teaching student ethics paper, essay paper. Some pre-का भी part I will be teaching you, but essay and ethics are main domains and GS paper on का Indian society. So 250 marks का ethics, 250 marks का essay and almost 75 marks का Indian society का paper. So 575 marks का mains exam I will be personally guiding you here. Okay, along with सारे subjects का personal mentorship I will be providing you. But mostly I will be focusing on these 3 parts in your coaching. और इसमें I will be personally guiding, बाकी भी subjects सारे अच्छे faculties will be taking. अब इसमें याद रखना guys कि आंसर राइटिंग ये भी बहुत मैटर करता है एंड आई विल बी हेल्पिंग यू विद डेली आंसर राइटिंग. आपका इवैल्यूएशन जो अपने वीकली टेस्ट होंगे उसका पर्सनल इवैल्यूएशन एंड फीडबैक आई विल बी गिविंग यू. तो मेंस पे वी विल बी फोकसिंग मोर एंड दैट एक्चुअली गारंटीज योर सिलेक्शन. अब उसमें और एक इशू क्या है ना गाइस कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स सिर्फ प्रीलियम के लिए पढ़ते हैं एंड दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि क्रैकिंग प्रीलियम्स इज मच टफर देन क्रैकिंग द मेंस. क्योंकि प्रीलियम बहुत सारे देते हैं, बहुत सारे प्रीलियम बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, लेकिन सबका प्लान होता है कि प्रीलियम्स होने के बाद डिसाइड करेंगे मेंस का, आगे तब देखेंगे. प्रीलियम क्रैक होने के बाद दे रियलाइज अरे मुझे इसे लिखना नहीं आता, आई डोंट नो हाउ टू राइट एथिक्स आंसर, आई हैवंट रिवाइज माय ऑप्शनल, 3-4 साल हो गए प्रीलियम ही नहीं निकली थी, हैवंट रिवाइज ऑप्शनल. दैट यू शुडंट बी डूइंग एट ऑल. और इसलिए जो यूपीएससी अगर 1000 सीट्स है ना तो अराउंड 15,000 स्टूडेंट्स मेंस के लिए सिलेक्ट करता है. अब ये 15,000 स्टूडेंट में 5-1,000 स्टूडेंट ऐसे होते हु हैड नॉट रिटन एसे इथिक्स पे कमांड ही नहीं होता. 5-1,000 ऐसे होंगे हु हैवंट डन ऑप्शनल या उसका आंसर राइटिंग या टेस्ट सीरीज. तो आपको 5-6,000 ही स्टूडेंट है मेंस में हु आर योर रियल कंपिटिटर और वो 5-6,000 में आपको सिलेक्ट होना है 3,000 जिनको इंटरव्यू का कॉल आएगा. एंड दैट्स व्हाई फर्स्ट टिप याद रखना एज वी प्रिपेयर, हमारा ये गोल रहेगा थ्रू आउट कोचिंग में कि आंसर राइटिंग हम इतना पहले से ही करेंगे पूरे 1 साल में यू विल गेट वेरी गुड कमांड ओवर आंसर राइटिंग. एंड सेकेंडली एसी एथिक्स पेपर विल ट्राई टू मास्टर और ये जो मेंस का पार्ट है विल डू वेरी सॉलिड. अलॉन्ग विद प्रीलिम्स का भी पार्ट वो होगा. सो 4 तारीख को जो लेक्चर होगा, टुमारो देयर इज हॉलीडे, सो 4 तारीख का जो लेक्चर होगा उसमें आई विल डिस्कस पेपर वाइज सब टॉपिक क्या है, कौन से टॉपिक में क्या क्या सिलेबस के टॉपिक्स है, सब टॉपिक्स. वो माइक्रो एनालिसिस सिलेबस का आई विल डू ऑन 4th. अभी आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू ओवरव्यू ऑफ द स्ट्रेटेजी. अब नेक्स्ट पॉइंट अंडरस्टैंड इन योर यूपीएससी प्रिपरेशन दैट यू नीड टू कीप इन माइंड. और एक्चुअली क्या है ना, हर कोचिंग में ये चीज सबसे पहले पढ़ानी चाहिए. दे डोंट टीच दिस इन द फर्स्ट प्लेस, डायरेक्टली टॉपिक चालू कर देते एंड स्टूडेंट्स देन गेट कंफ्यूज कि भाई मुझे कैसे प्लान करना चाहिए, हाउ आई शुड बी प्रिपेयरिंग माय स्टडी एटसेट्रा. सो रिमेंबर स्ट्रेटेजी मैटर्स मोर. सीधे डोंट एंड अप इन द बैटलफील्ड. You know your enemy first. So, as you are going to begin your UPSC journey with us, with UPSC Guide, remember ki what you are going to face. So, understand the exam. What exam demands from you. अब एक चीज याद रखना कि कल ही yesterday I was having dinner with one of my wife's batchmate. So, DCP is in Pune.
पुणे सिटी। तो अभी कुछ पुणे में प्रोटेस्ट चल रहे थे, कुछ स्टेट सर्विस, सिविल सर्विस स्टूडेंट्स के एक्सेट्रा, और उसी के बारे में वी वर डिस्कसिंग। तो वहां पे मैंने एक पॉइंट, जब हम डिस्कस कर रहे थे कि स्टूडेंट्स बहुत प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनका कुछ इश्यूज थे व्हाटएवर, बट द पॉइंट वाज कि भाई ये एग्जाम जो है ना वो आपके लिए नहीं है। फर्स्ट अंडरस्टैंड दिस एग्जाम इज नॉट, यूपीएससी इज नॉट कंडक्टिंग फॉर स्टूडेंट्स। एग्जाम यूपीएससी या स्टेट सिविल सर्विस वाले क्यों कंडक्ट कर रहे हैं? दे आर द ऑर्गेनाइजेशन, और वो ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए दे वांट द स्टूडेंट्स। सो उनको जो क्वालिटी चाहिए, दे वांट वेदर यू हैव दैट दोस क्वालिटीज और नॉट। सो ऑब्वियसली यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आज व्हाट यूपीएससी एक्सपेक्ट्स फ्रॉम यू, उनको किस टाइप के ब्यूरोक्रेट चाहिए, व्हाट काइंड ऑफ द स्टूडेंट्स दे एक्सपेक्ट। सो उसके लिए यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाई यूपीएससी चेंज सिलेबस 2013 में, और उसके बाद बहुत सारे स्टेट सिविल सर्विस में भी दे चेंज देयर सिलेबस। सो व्हाट वाज द रीजन व्हाई दे चेंज द सिलेबस? फर्स्ट विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो उसके लिए बहुत सारी कमिटीज अपॉइंट हुई थी। सेकेंड एआरसी, सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन एक कमीशन था, फिर कोठारी कमीशन भी एक, ऐसे बहुत सारे कमीशन थे, निगवेकर कमिटी, बसवन कमिटी एक्सेट्रा। उन्होंने बहुत सारे रिकमेंडेशन दिए थे, और उस रिकमेंडेशन पे यूपीएससी ने फाइनली सिलेबस चेंज किया। अब ये सारे रिकमेंडेशन में एक कोर पॉइंट जो था, जो उनको एक्सपेक्ट नहीं स्टूडेंट से एट ऑल, इज रोट मेमोराइजेशन। सो इफ यू थिंक कि यूपीएससी में बहुत रट्टा मारना पड़ता है, यस टू सम एक्सटेंट, but now UPSC don't expect your this memory skill, rote memorization. They don't expect you to mug up things. See, old syllabus जो था ना, उसमें I told you प्रीलिम में क्या था, जीएस पेपर, और दूसरा पेपर था ऑप्शनल का, सीसेट पेपर wasn't there, या एप्टीट्यूड का पेपर। What student used to do कि ऑप्शनल में they used to get very good marks. तो 8-10 साल they are preparing for optional, 8-10 साल आप ऑप्शनल प्रिपेयर करो, और ऑप्शनल प्रिपेयर करके यू क्रैक द प्रीलिम्स का एग्जाम। फिर मेंस में जाओ, तो मेंस में 1800 मार्क की मेंस थी, 6 पेपर, सो ऐसे पेपर एंड आपके ये 6 जनरल स्टडीज के पेपर। उसमें आपके जीएस के 2 ही पेपर थे, और 2 ऑप्शनल के 2-2 पेपर, 4 पेपर ऑप्शनल के थे, 300 मार्क, 1200 मार्क का ऑप्शनल, 600 मार्क का जीएस पेपर 1 पेपर 2, 1800 मार्क हो गए, और 300 मार्क का एसए का पेपर। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फिर आपके ऑप्शनल पेपर पे ही हिस्ट्री, ज्योग्राफी अगर 8-10 साल पढ़ा है, ऑब्वियसली दे यूज्ड टू क्रैक मेंस आल्सो ऑप्शनल के भरोसे। सो प्रीलिम ऑप्शनल के भरोसे, मेंस ऑप्शनल के भरोसे, इंटरव्यू गए एवरेज मार्क। अब इंटरव्यू था 300 मार्क का, उसमें भी अच्छे मार्क आ गए एवरेज, आपका सिलेक्शन गारंटीड। तो सिर्फ अगर आपको रट्टा मारना आता है ना, स्टूडेंट यूज टू क्रैक द एग्जाम। और इसलिए जो एज लिमिट था स्टूडेंट का, दोज हु यूज टू गेट सिलेक्टेड यूपीएससी में, वो अराउंड 29-30। अगर 1000 स्टूडेंट्स यूपीएससी सिलेक्ट करता था, तो 29-30 स्टूडेंट्स यूज टू बी, ये मैक्सिमम सिलेक्शन यूज टू बी 29-30 के एज ग्रुप में। लेकिन यूपीएससी को यही नहीं चाहिए था, रट्टा मारो काइंड ऑफ कैंडिडेट्स। यूपीएससी का जो कहना था, या उनको जो रिकमेंडेशन दिए थे, कि जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हो रहा है, गवर्नेंस चेंज हो रहा है, हमें बहुत डायनेमिक सिविल सर्वेंट चाहिए, रीजनिंग ओरिएंटेड। अब जैसे इंडिया के सामने प्रॉब्लम्स है, या दुनिया के सामने कि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, इतने रैपिडली हो रहा है, सारे न्यू चैलेंजेस, तो ये जो पुरानी ब्यूरोक्रेसी थी, ब्रिटिश के टाइम जैसी, सोशलिस्ट टाइम जैसी, दे डोंट वांट दैट काइंड ऑफ ब्यूरोक्रेसी, रट्टा मारो। अब ये देखना क्रिप्टो करेंसी आ गया, ओके, अभी फिर एआई वगैरह आ गया, और इसके साथ एडमिनिस्ट्रेशन उस रेट से इवॉल्व नहीं हो पा रहा जिस रेट से होना चाहिए। एंड दैट्स व्हाई दे सेड कि चेंज सिलेबस, यंग स्टूडेंट ज्यादा सिलेक्ट हो, रीजनिंग ओरिएंटेड स्टूडेंट ज्यादा हो, डायनेमिक पर्सनैलिटी के स्टूडेंट ज्यादा हो, एंड अकॉर्डिंगली दे चेंज द सिलेबस। सो बेसिकली फिर जो सिलेबस चेंज किया था, अंडरस्टैंड उनका कहना क्या है। तो ये एक्स चेयरमैन थे यूपीएससी के, डीपी अग्रवाल, said that the endeavor of the commission is to ensure that all the candidates are judged on the basis of in-depth knowledge and understanding rather than information gathered. So उनका कहना क्या है कि भाई इंफॉर्मेशन गैदर्ड ये चीज नहीं चाहिए, हमें कौन से स्टूडेंट चाहिए, who have in-depth knowledge
एंड प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट्स, एंड इसलिए यूपीएससी नाउ आस्क लॉट ऑफ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन. एंड सेम वे सेकंड एआरसी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, उन्होंने क्या कहा था, ऑल्सो रिकमेंडेड दैट रिजिड रूल बाउंड ब्यूरोक्रेसी बी चेंज इनटू फ्लेक्सिबल एक्शन ओरिएंटेड, कि हमें वो पुरानी ब्यूरोक्रेसी नहीं चाहिए, सिर्फ लॉ है फॉलो करो, लॉ है फॉलो करो. अब पिछले 70 साल से इंडिया में सिर्फ गरीबी मेजर करे, उनको वो ब्यूरोक्रेसी नहीं चाहिए जो गरीबी सिर्फ मेजर कर रही है, उनको वो ब्यूरोक्रेसी चाहिए वो देश की गरीबी हटाए, कुछ पॉजिटिव चेंज करे, ओके, बदलाव लाए. एंड इसलिए द डेवलपमेंट वर्क नीड्स फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रिक्ट नॉट स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ रूल्स रेगुलेशन, कि सिर्फ कायदे, व्हाट वी कॉल रेड टेपिज्म, कि भाई सिर्फ रूल्स लॉज बनाने वाली ब्यूरोक्रेसी नहीं, हमें देश बदलने वाली ब्यूरोक्रेसी चाहिए, डायनेमिक सिविल सर्वेंट. एंड इसलिए फिर यूपीएससी ने, सो व्हाट, जब सिलेबस बदला तो उनका डिमांड क्या था, दैट ट्रेनिंग ऑफ सिविल सर्वेंट शुड बी एबल टू ब्रिंग अबाउट बिहेवियरल एटीट्यूडनल चेंज. और इसलिए वो रट्टा मारो गैंग नहीं चाहिए, ऐसे एकदम फ्लेक्सिबल डायनेमिक. और इसी की वजह से गाइस आपका जो सिलेबस चेंज हुआ, उसमें सीसेट का पेपर आया. अब सीसेट का जो पेपर है उसमें चेक क्या होता है, आपका रीजनिंग स्किल, एप्टीट्यूड, पजल सॉल्विंग, कि जो ऑन स्पॉट उनको कोई भी क्वेश्चन दो, दे विल बी एबल टू सॉल्व दैट. और ऐसे ज्यादा सिलेबस बनाओ. और अकॉर्डिंगली फिर यूपीएससी ने जो सिलेबस बदला, तो सेकेंड ईयर से ऑल्सो बिलीव रैपिड एंड फंडामेंटल चेंजेस आर टेकिंग प्लेस इन कंट्री इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, अर्बनाइजेशन, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, टेक्नोलॉजिकल चेंज, कि जिस तरह से इंडिया रैपिडली अर्बनाइज हो रहा है, इकोनॉमिक चेंजेस हो रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी आया, अभी यह शेयर मार्केट, यूक्रेन रशिया वॉर हुआ, आज ईरान का वॉर स्टार्ट हुआ, इंडिया का शेयर मार्केट गिरा, बहुत चीजें अनसर्टन हो चुकी है. एआई में ये जो है ग्रॉक वगैरह आया, डिफेक वीडियोस बन रहे, इस तरह के जो चेंजेस हो रहे हैं, अगर इनको डील करने वाली ब्यूरोक्रेसी चाहिए. इंडिया का ब्यूरोक्रेसी का जो इश्यू है कि हर चीज में बैन बैन बैन, क्रिप्टो करेंसी आया बैन, एआई के व्हीकल्स आ गए बैन, कोविड आ गया बैन, एक नोटबंदी फिर से बैन. यूपीएससी ने यही बोला कि भाई बैन मेंटेलिटी के लोग नहीं चाहिए, हमें प्रॉब्लम सॉल्वर चाहिए. एंड अकॉर्डिंगली फिर उनको, सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखना जब आप यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, व्हाट सिविल सर्विस नीड्स इन ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड टुडे इज डायनेमिज्म. ऐसी ब्यूरोक्रेसी चाहिए जो एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल हो, डायनेमिक हो. अब डायनेमिज्म क्या होता है, जिसका जस्ट एग्जांपल आपको देने के लिए, कि एक अकबर बीरबल की स्टोरी है, अभी जस्ट टू टेल यू, कि अकबर ने बीरबल को एक बार पूछा कि विच इज द बेस्ट वेपन. ओके, तो अकबर बीरबल ने बोला कि एंड मौके पे हाथ में जो होना, दैट इज द बेस्ट वेपन. तो अकबर थोड़ा इरिटेट हुआ कि भाई सीधा सवाल पूछा था कि सबसे बेस्ट वेपन कौन, तो कुछ भी बता, स्वॉर्ड वगैरह कुछ भी. तो फिर बीरबल ने बोला कि मुझे टाइम दो, समय आने पे आई विल प्रूव. और फिर क्या हुआ कि एक दिन आगरा में वो अपने महल में थे, बीरबल अकबर बैठे थे, एक वाइल्ड इलेफेंट लोगों को मारने लगा. तो उसको इलेफेंट को उसके सोल्जर्स रोक रहे थे. व्हेन दे वर फाइटिंग ट्राई टू स्टॉप दैट इलेफेंट, अकबर बीरबल किले के ऊपर से देख रहे थे, तो एक सैनिक ने भाला फेंक के मारा वो हाथी को. हाथी थोड़ा इंजर्ड हुआ और उसने वो सोल्जर को देखा एंड बहुत जोर से वो सोल्जर की तरफ अटैक करने गया. अब वो उस सोल्जर के हाथ में कुछ भी नहीं था, लेकिन साइड में कोने में कुत्ता डर के कोने में सहमा हुआ बैठा था. वो सोल्जर ने उस कुत्ते को उठाया और घुमा के हाथी पे फेंक दिया. और जैसे वो कुत्ता हाथी पे गिरा, एलिफेंट गॉट स्टार्टल्ड और डर से वो भाग गया. और फिर बीरबल ने अकबर को बोला कि देखो कहा था समय पे जो हाथ में हो दैट इज बेस्ट वेपन. एंड इसी को बोला था डायनेमिक पर्सनैलिटी, कि भाई आपको किसी ने आप पे हमला किया, आपके पास पेन भी है तो पेन को भी वेपन यूज करना. अगर ये टाइप आप सोच सकते हो, दैट इज व्हाट वी कॉल डायनेमिज्म. और यही एग्जैक्टली यूपीएससी को चाहिए आपसे नए सिलेबस में. तो आप जब भी पढ़ रहे हो कोई चीज, आपको बहुत प्रॉपर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग सिलेबस का डेवलप करना है. रोट लर्निंग कुछ भी नहीं कर रहा, नेवर रोट मेमोराइजेशन. सो पॉइंट वाज, ये सीसेट का पेपर जो डाला, सीसेट का पेपर ऑप्शनल पूरा हटा दिया उन्होंने प्रीलिम से. सीसेट पेपर में व्हाट दे मेजर इज योर दिस एप्टीट्यूड, एबिलिटी टू सॉल्व पजल्स, देन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, ये सारी चीजें. इससे व्हाट दे आर चेकिंग इज एग्जैक्टली दिस
डायनेमिक एबिलिटी। एंड सेम वे आगे जो मेंस के पेपर है, एसए के पेपर है, जीएस 1 2 3 4 एसए इथिक्स वगैरह के जो पेपर है, इसमें भी याद रखना गाइस कि इन पेपर्स में भी पहले जो सवाल आते थे पुराना सिलेबस में कि दे यूज्ड टू आस्क कि भाई पानीपत के 3 बैटल, पानीपत का पहला बैटल, दूसरा बैटल, तीसरा बैटल, ये कौन से साल हुआ या किसके बीच में वॉर हुआ, पानीपत 1 2 3 कौन सा ईयर में हुआ, कौन किसके साथ लड़ा, सारे इस तरह के क्वेश्चन आते थे हिस्ट्री में भी। नाउ दे डोंट आस्क यू इस तरह के क्वेश्चन। अब यूपीएससी में कैसे सवाल आ रहे हैं न्यू पैटर्न में कि भाई पानीपत का तीसरा जो बैटल हुआ, व्हाई मराठास वेंट टू दिल्ली टू फाइट मुगलों का वॉर। ये तो मराठास का वॉर नहीं था, अब्दाली ने मुगलों पे अटैक किया था, ये ईरान से जो अब्दाली आया था, ही अटैक मुगल्स। तो भाई मराठास क्यों गए दिल्ली में मुगलों को प्रोटेक्ट करने के लिए। इस टाइप के जो क्वेश्चन है दे आर एग्जैक्टली द आपके रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रहा है। फिर क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, पहले सिलेबस में कैसे आता था कि बुद्धिज्म पे, बुद्धा पे शॉर्ट नोट लिखो या बुद्धा के 4 नोबल ट्रूथ्स एक्सप्लेन करो। अब क्वेश्चन किस तरह से आता है जो इथिक्स में आया था कि विच बुद्धास आइडियाज और क्वालिटीज दैट बुद्धा टॉट आर रिलेवेंट टू इंडियन सोसाइटी टुडे। तो भाई कौन सी आइडियाज है बुद्धा की जो आज भी सोसाइटी को एप्लीकेबल है। ओके, इस तरह से सारे क्वेश्चन आते हैं डायनेमिक। अब ये उनको क्यों चाहिए इस तरह की पर्सनैलिटी ब्यूरोक्रेट्स में, सिलेबस में इश्यू इतना ही है कि अगर वो रट्टा मारो ब्यूरोक्रेसी जो सिलेबस में यूपीएससी हायर करती थी पहले, ये ओल्ड सिलेबस के जो सारे ब्यूरोक्रेट्स, उनको जो चेंजेस हो रहे ब्यूरोक्रेसी में ये समझ ही नहीं आ रहे, उस रेट से वो चेंज ही नहीं कर पा रहे देश को। और इसका एक क्लासिक एग्जांपल जो मैं इथिक्स में भी आपको पढ़ाऊंगा, एक हॉन्डुरास करके एक कंट्री है, अगर ब्यूरोक्रेसी डायनेमिक ना हो तो देश कैसे बर्बाद कर सकती है, उसका एक क्लासिक एग्जांपल है। उन्होंने ब्रिज बना दिया नदी पे। अब ये मत समझो कि भाई ऐसा कैसे ब्रिज बना दिया, एक्चुअली ब्रिज जब बनाया था तो सही बनाया था उन्होंने। 300 करोड़ का ब्रिज बना दिया, गरीब देश, लोगों का 300 करोड़ का पैसा ब्रिज बनाने में डाल दिया। लेकिन ब्रिज बनाने के बाद साइक्लोन आया और साइक्लोन ने अपनी डायरेक्शन ही नदी की चेंज कर दी, और नदी पहले यहां से जाती थी, अब नदी यहां से जाने लगी। अब वो जो ब्रिज है ना, सारे दुनिया में ब्यूरोक्रेसी में, पबैड या एमबीए के पेपर में, इट इज द क्लासिक एग्जांपल ऑफ फेलियर ऑफ अ ब्यूरोक्रेसी। देश के ये जो ब्यूरोक्रेट्स है, आईएएस आईपीएस आईआरएस, ये सब लोग देश का पैसा कैसे बर्बाद कर सकते हैं अगर दे फेल टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर, अगर ये फ्यूचर ठीक से प्रेडिक्ट नहीं कर पाए या समझ नहीं पाए। और इसलिए यूपीएससी को नए सिलेबस में आपसे क्या चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी कि भाई आप में वो फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, डायनेमिक थिंकिंग। तो ये जो ओवरऑल सिलेबस उन्होंने बदला, उसकी जो डिमांड थी, सॉरी okay, so what UPSC wants from you in new syllabus। तो पहले तो याद रखना ये पॉइंट मैंने बोला, इन डेप्थ नॉलेज, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग किसी भी टॉपिक का। ओके, अब रट्टा नहीं मारना, कौन सा पानीपत का बैटल क्यों हुआ, कैसे हुआ। अब ये जो मैंने आपको सिंपल एग्जांपल अभी बताया कि पानीपत की लड़ाई, भाई मराठास दिल्ली अटैक करने क्यों गए, तो खुद को ही सवाल पूछो जब भी आप पढ़ोगे। और ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट हम क्लास में बताएंगे आपको। फॉर एग्जाम्पल कि ये जो इश्यू था पानीपत का, आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लाना है। ये नहीं कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत किसके बीच में हुआ, मराठास और अब्दालीज, किस तारीख को हुआ, बैटल का रिजल्ट क्या था, मराठा हारे, क्या हुआ नहीं हुआ। अब क्वेश्चन किस तरह से आ रहे हैं, ये यूपीएससी ने पूछा हुआ क्वेश्चन है कि व्हाई नादिर शाह इन्वेडेड इंडिया, कि वो जो नादिर शाह था अफगान या ईरान से जो आया था, उसने इंडिया पे अटैक क्यों किया। अब बेसिकली इशू ये था कि मुगल जो थे, शिवाजी महाराज के साथ जो मुगलों की लड़ाई हुई औरंगजेब की, औरंगजेब मारा गया। उसके बाद मुगल्स काफी वीक हुए थे, और ईरान में जो नादिर शाह था उसके एम्पायर में कुछ लोगों ने रिबेलियन किया था, और जब वो उनको एक्शन लेने लगा उन रिबेल्स के खिलाफ, वो सारे लोग ईरान छोड़ के अफगानिस्तान में आके छुप गए। अफगानिस्तान तब मुगल एम्पायर का पार्ट था, इंडिया का पार्ट था।
तो नादिर शाह ने मुगलों का जो राजा था ये मोहम्मद शाह रंगीला, उसको लेटर लिखा कि ये जो अफगानिस्तान के एरिया में जो ये लोग आके छुपे रिबेल्स मेरे यहां पे जो विद्रोह कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ एक्शन लो। और ये नादिर शाह ने बोला एक्शन लूंगा, प्रॉमिस किया, सॉरी मोहम्मद शाह रंगीला ने, लेकिन वो एक्शन ही नहीं ली। तो उसने एक्शन नहीं ली तो नादिर शाह खुद अपनी मिलिट्री लेके आया अफगानिस्तान। अब आप इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस कर रहे हो, दूसरे के देश में जा रहे हो, लेकिन मुगलों की आर्मी कहीं पे थी नहीं। उसने वो सारे रिबेल मार दिए, तो रिबेल अंदर और पाकिस्तान साइड आके छुप गए, लाहौर वगैरह में। वो बंदा लाहौर की साइड भी आया तो भी मुगलों की आर्मी नहीं, सीधे बंदे ने फिर दिल्ली पे अटैक किया और दिल्ली पूरा लूट लिया। तो नादिर शाह ने क्यों इंडिया पे अटैक किया था, आपको वो कंसेप्चुअली चीजें समझनी है। और फिर जब मुगलों को समझ में आया कि वी कांट प्रोटेक्ट दिल्ली, उन्होंने मराठाओं से प्रोटेक्शन मांगा कि हमें गार्ड करने के लिए मदद करो, और उसके बदले मराठास ने एग्री किया 20,000 की मिलिट्री हमेशा दिल्ली में रखेंगे, दिल्ली प्रोटेक्ट करने के लिए, और अफगानिस्तान उसके बदले पाकिस्तान अफगानिस्तान का सारा रेवेन्यू उन्हें मिलेगा। तो आप जो भी चीजें पढ़ो ना, आपको इन डेप्थ नॉलेज चाहिए, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, रट्टा कुछ भी नहीं मारना। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हम क्लास में आपको पढ़ाएंगे, ये कंसेप्चुअल बेस आपका पहले स्ट्रॉन्ग किया जाएगा। फिर रीजनिंग स्किल, एनालिटिकल स्किल, आपको ये रीजनिंग, अब जो भी आपने पढ़ लिया आपको उस पर रीजन करना आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिमांड है पेपर की। अब मैंने आपको बुद्धा पढ़ा दिया, लेकिन क्वेश्चन किस तरह से आ रहे कि भाई बुद्धा के कौन सी आइडियाज आज भी सोसाइटी को रिलीवेंट है। लास्ट ईयर इथिक्स के पेपर में क्वेश्चन आया कि गुरु नानक उन्होंने कौन सी आइडियाज दी थी जो आज भी सोसाइटी को अप्लाई हो रही है। या ऐसे में आपको इस तरह से ऐसे आएगा कि अगर गांधी नहीं होते तो, इफ गांधी वाजंट देयर, तो इंडिया का इंडिपेंडेंस कुछ अलग होता क्या। या इस तरह से ऐसे आता है कि वी नीड गांधी मोर देन एवर टुडे, कि गांधी की हमें आज ज्यादा जरूरत है पहले से। तो अब इसमें आपको गांधी तो पढ़ा दिया कॉन्सेप्चुअली, यू शुड बी एबल टू रीजन कि भाई गांधी के कौन से थॉट्स है कि जो आज भी सोसाइटी को लागू हो रहे, और यू शुड बी एबल टू जनरेट आंसर, राइट आंसर। तो ये रीजनिंग स्किल आपको डेवलप करनी है, कोई भी चीज पढ़ रहे हो इस तरह से रीजनिंग करना। अब रीजनिंग स्किल मतलब क्या, उसका और एक एग्जांपल आपको देने के लिए कि यूपीएससी क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, क्वेश्चन किस तरह से आ रहे हैं। पहले ये समझो यूपीएससी की प्रिपरेशन सारा आगे का पार्ट है, यूपीएससी को क्या एक्सपेक्ट है यही नहीं समझोगे तो आगे का पार्ट विल बी टोटली यूजलेस जब पढ़ोगे तो। इसलिए मुझे पहले आपको ये चीज सिखानी है कि यूपीएससी उतर रहे हो तो कैसे प्रिपेयर करना है, क्या प्रिपेयर करना है, क्या एक्सपेक्ट है उनको। सो नो योर एनिमी द वे एज आई से। अब देखना, एक बार यूपीएससी ने ये पूछा ज्योग्राफी में, अब ज्योग्राफी में ये नहीं पूछते मॉनसून कैसे आता है, कितने बारिश होती है इंडिया पे। क्वेश्चन क्या आया, अगर हिमालय नहीं होते तो इंडिया का क्लाइमेट कैसे होता। ओके, तो अगर हिमालय नहीं है तो इंडिया का क्लाइमेट कैसे होता, ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा था। अब इसमें आपको, हम तो ज्योग्राफी सारा पढ़ा देंगे आपको बेस्ट लेवल, लेकिन आपको भी खुद रीजन करने आना चाहिए। तो हिमालय की वजह से क्या होता है, तो रशिया साइबेरिया से बहुत जो ठंडी हवा आती है ना, वो हिमालय रोक देता है, और इसकी वजह से नॉर्थ इंडिया में इतनी ठंड नहीं पड़ती। अगर हिमालय नहीं होता तो नॉर्थ इंडिया इतना ठंडा होता कि नॉर्थ इंडिया पूरा डेजर्ट होता। और आप दुनिया का मैप देख लो, और इंडिया, नॉर्थ इंडिया से आप सीधे ईरान इजराइल की साइड जाओ हॉरिजॉन्टली, ये सारा ईरान, सऊदी अरेबिया, दुबई, ये सेम लेवल पे इंडिया के, वहां पे पूरा डेजर्ट है, क्योंकि उनके यहां पे जो ठंड हवा आती है रोकने के लिए कुछ भी नहीं है, वो डेजर्ट बन गए। हमारे यहाँ पे हिमालय था, इसलिए हिमालय की ठंडी हवा भी रोकी, और इंडिया का जो मानसून की हवा जा रही है उसको भी वो बैरियर काम करता है, और इंडिया में भी मानसून की बारिश होती है। अगर हिमालय नहीं होता तो इंडिया पूरा डेजर्ट होता। सो बेसिकली ये आपको रीजनिंग करने आना चाहिए। ये अगर आप ठीक से सीख गए ना, यूपीएससी इज वेरी इजी डील। देन एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, फिर आप जो भी पढ़ रहे हो ना उसका अप्लाइड नॉलेज बहुत जरूरी है। जैसे एक सवाल मैंने पूछे, बुद्धा पढ़ा, लेकिन बुद्धा के थॉट्स आज कैसे एप्लीकेबल है। गांधी पढ़ा तो गांधी के थॉट्स आज कैसे एप्लीकेबल है। सारे सवाल ऐसे ही आते हैं। C1 आपके इथिक्स पेपर, ये इथिक्स का जो पेपर है जीएस पेपर 4, उसमें 130-140 मार्क का सिर्फ क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन आंसर। आपको 140-150 मार्क के लिए सेपरेटली दे विल बी आस्किंग यू केस स्टडीज, 6-7 केस स्टडीज आएंगी। केस स्टडी चेक्स एंटायरली योर
अप्लाइड नॉलेज। इवन सीसैट पेपर में क्या है, पजल सॉल्व करना एटसेट्रा, पूरा रीजनिंग स्किल, एनालिटिकल स्किल दे चेक। फिर आपका फ्लेक्सिबल डायनेमिक थिंकिंग, क्वेश्चन जिस तरह से आ रहे हैं, आपका जब इंटरव्यू को भी जाओगे ना, दे एक्सपेक्ट एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल डायनेमिक ऑन स्पॉट थिंकिंग। अब फॉर एग्जाम्पल वन ऑफ माई स्टूडेंट, वो यूपीएससी की इंटरव्यू को गई, उसका इंटरव्यू हुआ, उसने मुझे फोन ही नहीं किया, तो मैंने फोन किया अगले दिन, अरे क्या हुआ, तेरा इंटरव्यू था कल। तो उसको लग रहा था उसका इंटरव्यू काफी खराब हुआ। सो उसने बोला कि सर थोड़ा खराब हुआ। मैंने बोला क्या हुआ, तो शी सेड कि सर जैसे मैं इंटरव्यू पैनल के सामने गई, वो 5 लोग जो थे सवाल पूछने लगे, तो चेयरमैन पहले पूछता है सवाल, तो चेयरमैन ने उसको 3-4 सवाल पूछे, और उसमें उसने चिपको मूवमेंट पे एक सवाल पूछा, उसके जो बहुगुणा उन पे एक सवाल पूछा, गांधी पीस प्राइज उनको मिला था उस पे एक सवाल पूछा। उसने कुछ भी नहीं सुना था या पढ़ा था, अनफॉर्चुनेटली उसको एक ही क्वेश्चन का आंसर नहीं आया। तो चेयरमैन ने चौथा सवाल उसको पूछा कि स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ऑफ अरुणाचल फॉर इंडिया सिक्योरिटी, कि भाई अरुणाचल का क्या सिग्निफिकेंस है इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी को। तो उसने आंसर में बोला कि उसको वो भी पता नहीं था, तो उन्होंने बोला कि सर आई डोंट नो अरुणाचल का स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस इंडिया के लिए। तो चेयरमैन ने उसको टॉन्ट किया, डू यू इवन नो वेयर अरुणाचल प्रदेश इज, क्या तुझे इतना तो पता है क्या कि अरुणाचल प्रदेश है कहां पे। अब इतना इंसल्ट प्रीलियम देने के बाद, मेंस देने के बाद, बट वो बंदी इतनी काम कंपोज्ड या एकदम स्मार्ट जो थी, उसने इंसल्ट लिया ही नहीं, और उसने सीधे कोऑर्डिनेट बता दिए कि अरुणाचल प्रदेश इज लोकेटेड 92 डिग्री ईस्ट इंडिया के। उसने वो इंसल्ट को भी सवाल लिया, एंड दैट्स व्हाट एग्जैक्टली दे वांटेड, कि भाई कल कोई मिनिस्टर आके इसके सामने सर भी फोड़े ना, ये बंदी किसी का नहीं सुनेगी। जो लॉ है, रूल है, रेगुलेशन है, बट ऑन स्पॉट इंसल्ट भी हो तो भी क्वेश्चन को, उसने इंसल्ट को भी क्वेश्चन बना के आंसर दिया। दैट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी व्हाट दे वांट, फ्लेक्सिबल, डायनेमिक, एक्सट्रीमली। सिचुएशन ऑन स्पॉट कुछ भी हो, ऑन स्पॉट यू शुड बी एबल टू सॉल्व। डिजास्टर, अब कल आप आईएएस आईपीएस बन गए, डिजास्टर हो गए, ओके, यू शुड बी एबल टू सॉल्व दिस इश्यूज वेरी फ्लेक्सिबली। ओके, वहां पे कुछ प्रोटोकॉल नहीं काम करते, या कोविड जैसे आया। अब कोविड जब देखना, जब आया, इससे पहले इंडिया का कोविड का जो एक्ट था वो 100 साल पुराना था, जो पूना में प्लेग आया था ना ब्रिटिश के टाइम पीरियड में, उसके बाद से हमने लॉ भी नहीं चेंज किया था। 100 साल फिर से कोई ऐसा पैंडेमिक नहीं हुआ, और सडनली कोविड आया। उस प्लेग के बाद ब्यूरोक्रेसी को एक्सपीरियंस ही नहीं था, आईएएस आईपीएस सारे लोगों को, कि कोविड से कैसे डील करना है। ऑटोमेटिकली पूरा ब्यूरोक्रेसी जो प्रॉब्लम में अटक गई। इसलिए ऐसे कोई नए भी चैलेंजेस आए, ग्लोबल वार्मिंग हो, ईरान का वॉर हुआ, इंडिया का शेयर मार्केट गिरा, कुछ भी इस तरह टेररिस्ट अटैक हो, यू शुड बी एबल टू डील विद देम वेरी इफेक्टिवली। इसलिए हर सवाल में ये आपका यही चेक करने वाले, नॉलेज कितना परफेक्ट है, कंसेप्ट। और याद रखना यूपीएससी में, ओके, कंटेंट इज द गेम। बंदे लाइक आंसर राइटिंग जब आप कर रहे हो मेंस का, उसमें आपका प्रेजेंटेशन कितना अच्छा है, आपका क्या कहते हैं उसे, ये जो हैंड राइटिंग कितना अच्छा है, क्वेश्चन कितना अच्छे से डायग्राम वगैरह ऐड कर रहे हो, दीज आर ऑल सेकेंडरी थिंग्स। अगर आंसर में आपका कंटेंट बहुत स्ट्रांग है ना, कंटेंट इज द गेम। कंटेंट ही एग्जाम पास करवाता है, कंटेंट नहीं और बाकी बहुत रिप्रेजेंटेशन अच्छा है, नो पॉइंट। जैसे मैं जोक के तौर पे बताता हूं कि भाई इस पे ऐसे पूछा उन्होंने, मदर पे ऐसे पूछा, मां पे, और आप गाय पे ऐसे लिख के आ गए। भले अब गाय की बहुत अच्छी ड्राइंग बनाई हो, दे आर नॉट गोइंग टू गिव यू द मार्क्स। पहले कंटेंट, टू द पॉइंट अंडरस्टैंडिंग, रीजनिंग स्किल, और ये सारा नॉलेज, एप्लीकेशन ओरिएंटेशन आप में बहुत होना चाहिए, फ्लेक्सिबल डायनेमिक थिंकिंग, एंड आपकी पर्सनैलिटी। और उनको क्या चाहिए कि ये सिलेबस चेंज करने के बाद, लिटरली आई एम टेलिंग यू, पहले ओल्ड सिलेबस में जो बच्चे सिलेक्ट होते थे मोस्टली 29-30 के एज में, अभी जो सिलेक्ट हो रहा है ना मैक्सिमम ब्यूरोक्रेट्स, वो 24-25 के एज में हो रहे। मेरी वाइफ का भी सिलेक्शन अराउंड 25-26 के एज में हुआ। मोस्ट ऑफ देम गेटिंग सिलेक्टेड आर यंग वंस। लेकिन इसके लिए गाइज आप बहुत पहले से अच्छे से प्रिपेयर करो, कि कोचिंग लेके अच्छे से सारा प्रिपरेशन करके जो पहला अटेम्प्ट दे रहे हो ना, यू शुड बी इन पोजीशन कि आपका सारा प्रिपरेशन अच्छे से हो चुका है, और एग्जाम जब दोगे, कोचिंग वगैरह सारा हो चुका है, एंड एग्जाम जब दोगे यू विल बी इन सच ए पोजीशन कि आपकी प्रीलियम मेंस जल्दी क्रैक हो, ओके। और जितने जल्दी आप इंटरव्यू पैनल के पास पहुंचोगे ना, आप यंग हो ना, दे विल बी गिविंग यू वेरी गुड मार्क्स पहले से। इसलिए जो भी बच्चे मेरे पास आते हैं सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, मैं तभी से बोलता हूं स्टार्ट प्रिपरेशन,
जितने जल्दी पहुंचोगे इंटरव्यू के पैनल तक, दे विल गिव यू वेरी गुड मार्क्स। उनकी डिमांड ये है कि भाई मोल्डेबल, ओपन टू चेंज पर्सनैलिटी, यंग लोगों को लो। जितना एज ज्यादा बढ़ता जाता है ना, लोगों की चेंज करने की एबिलिटी कम हो जाती है, उनको अब वैसे बंदे नहीं चाहिए। एंड यू कैन क्लियरली सी द ट्रेंड। मैक्सिमम स्टूडेंट जो सिलेक्ट हो रहे हैं ना 23 टू 25 26 के एज में, देन आपको हर सब्जेक्ट का बहुत मल्टी डायमेंशनल नॉलेज चाहिए। सी पहले का सिलेबस क्या था, जीएस के 2 ही पेपर थे, ऑप्शनल के 4 पेपर थे। तो उनको क्या एक्सपेक्ट था कि 2 ऑप्शनल का बहुत इनडेप्थ नॉलेज। ओके, अब उनको ऑप्शनल का इनडेप्थ नॉलेज, किसी एक पेपर का इनडेप्थ नॉलेज नहीं चाहिए, उनको हर पेपर का बेसिक नॉलेज आप उनको चाहिए। इसलिए व्हाट दे वांट नाउ कि आप भाई हिस्ट्री अच्छे से पढ़ो, ज्योग्राफी बेसिक लेवल अच्छे से पढ़ो, इंडियन सोसाइटी पढ़ो, पॉलिटी पढ़ो, इकोनॉमिक्स पढ़ो, इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ो, इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ो वगैरह, साइंस एंड टेक पढ़ो अच्छे से, डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ो, इथिक्स पढ़ो, एसे राइटिंग में आपके एनालिटिकल स्किल्स, एसे राइटिंग वो अच्छे से समझो। सो व्हाट दे वांट नाउ इज नॉट किसी एक सब्जेक्ट का इनडेप्थ नॉलेज, बट हर सब्जेक्ट का गुड नॉलेज। ओके, बेसिक। सो इसी को बोला जाता है इंटरडिसिप्लिनरी, मल्टी डायमेंशनल नॉलेज, व्हाट दे एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। ओके, और उसके अलावा उन्होंने एक चेंज जो सिलेबस किया, उसमें सबसे और एक मेजर चेंज क्या किया, इथिक्स एंड मोरल पर्सनैलिटी, ये उनको चेक करने, पूरा एक अलग से पेपर इथिक्स का ऐड किया, 250 मार्क का वगैरह। लेकिन इस पेपर में ये मत समझना कि वो आपकी इथिकल पर्सनैलिटी कितनी है और आप सर्विस में आने के बाद कितना इथिकली जॉब करोगे वगैरह, ये सारा चेक करने वाले। दैट्स नॉट द केस, ये पेपर का डायमेंशन पूरा अलग है। अब देखना कि फॉर एग्जांपल इंडिया में एबॉर्शन करना 24th वीक तक अलाउड है, 24th वीक के बाद एबॉर्शन करना अलाउड नहीं है। लेकिन केरला में एक केस हुआ था, वो इथिक्स पेपर में आई विल डिस्कस विथ यू। एक 12-13 साल की लड़की थी, उसका रेप हुआ और वो प्रेग्नेंट हो गई, और प्रेग्नेंट है ये पता चला आफ्टर 24th वीक। अब ये केस गई हाईकोर्ट के सामने केरला के। अब इस केस में लॉ तो बोल रहा है 24th वीक के बाद प्रेगनेंसी टर्मिनेट नहीं कर सकते, लेकिन वो केस बहुत अलग थी। 13 साल की लड़की, रेप भी हुआ है, उसमें प्रेग्नेंट है वगैरह, क्या करे ना करे। अगर नेचुरल डिलीवरी करने को गई लेकिन उसकी एज इतनी कम है कि वही मर गई अगर डिलीवरी में वगैरह, तो इस तरह के डिसीजन जब आपको लेने हैं ब्यूरोक्रेसी में, तो आपको कौन कौन से इथिकल मोरल फ्रेमवर्क्स पता होने चाहिए, वो पेपर आपकी ये साइड चेक करता है। तो अभी जैसे हम रिसर्च करें एनिमल्स पे, जू बनाते हैं, तो किसी जानवर को जू में रखना ये इथिकल है या अनइथिकल है, या एनिमल पे हम जो ड्रग्स बना रहे हैं पहले एनिमल्स पे टेस्ट करते। ओके, एनिमल को तड़पा के मार रहे हो रिसर्च में, तो रिसर्च में एनिमल्स को यूज करना, ये सारी चीजें इथिकल मोरल एंगल, ये इसके लिए वो इथिक्स का पेपर अलग से ऐड किया है। एंड उसमें और एक जो मेजर चेंज आपको देखने को मिलेगा कि स्टडी विथ फोकस ऑन करंट इश्यूज, आपको करंट इश्यूज बेस्ड सिलेबस काफी हो चुका है। अभी मोस्ट ऑफ द पेपर में, ओके, प्रीलियम में भी 100 क्वेश्चन है ना, तो 40 एक क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के आने वाले जीएस पेपर 1 में। इवन मैंने जो बोला कि आपका जो मेंस के पेपर है, एसे पेपर, उसको हटाओ, इथिक्स पेपर थोड़ा स्टैटिक है लेकिन उसमें भी करंट के क्वेश्चन आते हैं। और उसके बाद आपके जीएस 1, 2, 3, ये जो 3 पेपर है, इसमें भी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, आधे से ज्यादा पेपर आपका करंट बेस्ड होगा। ओके, तो इसलिए करंट बेस्ड ज्यादा है ना, तो इसलिए क्या होता है कि जो बच्चे 4-5 साल से भी प्रिपेयर कर रहे हैं ना, कोई गारंटी नहीं अगले साल का प्रीलिम भी निकले, मेंस भी निकले, अगर आपने करंट नहीं पढ़ा है तो। ओके, इसलिए आपको हमेशा करंट बेस्ड, लेकिन आप उस साल करंट अच्छे से पढ़ा है ना। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, करंट पे ज्यादा फोकस बढ़ाया यूपीएससी ने। इसका फायदा यह है कि जो 5-6 साल से प्रिपेयर कर रहा है और जो आप जैसे हो, अभी प्रिपेयर कर रहे हो, यंग हो एंड पहला अटेम्प्ट दे रहे हो या 2-3 साल बाद पहला अटेम्प्ट दे रहे हो, आप और वो 4-5 साल से पढ़ा हुआ बच्चा, दोनों को टू ग्रेट लेवल यूपीएससी ने सेम लेवल पे लाया। ओके, तो इसमें उन्होंने कि ये जो चेंज किया करंट बेस्ड, दैट इज एक्चुअली गुड फॉर यू, जो आप अभी से आप प्रिपेयर कर रहे हो, क्योंकि कितने साल प्रिपेयर कर रहे हो, नाउ इट डजंट मैटर। करंट अफेयर की वजह से इतना हुआ है कि आप उस साल कितने अच्छे से पढ़ रहे हो, करंट वगैरह ये सारे टॉपिक्स। और इसमें फिर आपके करंट्स के कंटिन्यूअसली लेक्चर्स होंगे सेपरेटली। इथिक्स ऐसे तो मैं खुद पढ़ाऊंगा, और बाकी सब्जेक्ट्स का भी जो सारी फैकल्टी आई टोल्ड यू, हमारी एक भी फैकल्टी नहीं है जिसको 10 साल से कम एक्सपीरियंस है।
एंड सो ऑल ऑफ देम आर मास्टर ओवर ऑल दिस सब्जेक्ट्स, और ये कंटिन्यूसली आपको टॉपिक भी पढ़ाएंगे। और आपका नॉलेज गेन कितना हुआ ये चेक करने के लिए हर संडे या सैटरडे आपकी वीकली टेस्ट होगी। जो जो टॉपिक पढ़ाया, अब पहले एक आध महीने नहीं होगी, जब आपका सिलेबस अच्छे से थोड़ा बहुत पढ़ के हो जाए, फिर उसके बाद कंसिडरेबल टॉपिक हो जाए पढ़ा के, तो उसके बाद टेस्ट आपके चालू होंगे। और ये टेस्ट में आप जो आंसर राइटिंग वगैरह करोगे, ओके, पर्सनली मैं उसका इवेल्युएशन करूंगा, ये सारे पेपर्स का वीकली आपको फीडबैक दूंगा। तो पहले से आपका आंसर राइटिंग पार्ट भी हम इंप्रूव करते जाएंगे, ओके, इसके साथ। एंड अलॉन्ग विद आपको कोई भी कंसेप्चुअल इश्यूज हो, डाउट्स हो, क्लास में भी टीचर से क्लियर करवा लेना, या फिर यू कैन कम टू मी, मीट मी पर्सनली, एंड आई विल पर्सनली एक्सप्लेन यू ऑल दोस सब्जेक्ट्स। या जो बच्चे अभी ऑनलाइन है और ऑनलाइन एनरोल करेंगे, वो उनके पास सबको मेरा पर्सनल नंबर होगा। सो आई विल बी अवेलेबल फॉर यू टू डू दिस पर्सनल मेंटोरशिप। ये मेजर हमारा एक यूएसपी एज यू से, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या है ना, ये जो मेंटोरशिप जो करते हैं, ऐसे बच्चे होते हैं जिन्होंने 2-3 बार इंटरव्यू दिए और खुद भी प्रिपेयर कर रहा है, ये बंदे मेंटोरशिप करते हैं। यहां पे दैट वोंट बी द केस। यहां पे सिर्फ जिन्होंने एडमिशन लिया है उनको पर्सनली आई विल बी गिविंग द मेंटोरशिप। और ऐसा नहीं होगा कि एक साल खत्म तो हमारा रिश्ता खत्म। आप जब तक भी प्रिपेयर कर रहे हो, यू आर प्रिपेयरिंग सिंसियरली, you can be in touch with me and I will help you as much as I can throughout. So basically यूपीएससी का सिलेबस ठीक से क्या डिमांड है, मुझे वो आइडिया आपको देनी थी। इसलिए डोंट वर्क लाइक अ डोंकी, बी अ हॉर्स। रट्टा मारना इस तरह से मत प्रिपेयर करो। और बहुत सारे बच्चे ना हिस्ट्री, ज्योग्राफी, यही सब्जेक्ट पढ़ते बैठे, पॉलिटी, पूरे 6-6 महीने। अब आपको मैंने मार्क लिस्ट दिखाई, एसए में बहुत कम पढ़ना पड़ता है, आपको आराम से 140-150 मार्क आते। इथिक्स एक ही पेपर है, 140-150 मार्क आते। लेकिन जीएस पेपर 1 जो है मेंस का, उसमें देखना हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड इंडियन सोसाइटी, 3 पार्ट्स है। हिस्ट्री में भी आपके 4 ये सब टॉपिक्स है, मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, आर्ट, आर्किटेक्चर, कल्चर। 4 पेपर पे आपको आएंगे 6 क्वेश्चन। इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, सोशल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ये सारे पार्ट पे आएंगे 6 क्वेश्चन। इंडियन सोसाइटी एक छोटा पार्ट है, उस पे आते हैं 6 क्वेश्चन। तो भाई 4 किताबें पढ़ के 6 क्वेश्चन, उससे अच्छा इथिक्स का एक किताब, एक क्लास 250 मार्क, एसे का एक बुकलेट, एक क्लास 250 मार्क, और हिस्ट्री की 4 किताबें 70-80 मार्क। तो कौन सा पेपर कितना प्रिपेयर करना है, कितना वेटेज किसको है, ये सारी चीजें पहले समझो, ओके। तो आगे के 3-4 लेक्चर में मैं यही सारा स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाला हूं। अगर ये स्ट्रैटेजी डिस्कस किए बिना अगर आप प्रिपरेशन चालू करोगे ना, यू विल बी वेस्टिंग ऑल योर प्रिपरेशन का टाइम, एनर्जी, सब कुछ। तो फर्स्ट अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द सिलेबस पेपर। फिर उसके बाद याद रखना कि एज यू आर प्रिपेयरिंग, ये एक इंपॉर्टेंट चीज, सो 33% सक्सेस स्ट्रैटेजी रूल ऑफ यूपीएससी एग्जाम। अब गाइस, पहले कि आपने कोचिंग लगा दिया, ओके, आई विल नेवर से, और ये 33 स्ट्रैटेजी मतलब क्या, कि भाई आपके सिलेक्शन में कोचिंग, लिटरली भले मैं कोचिंग इंडस्ट्री में हूं, आई कैन सेल यू द ड्रीम्स कि भाई कोचिंग कर लो, ये वो बहुत सिलेक्शन होगा, 100% गारंटी रिजल्ट, एंड इस तरह से। ये यूट्यूब पे ऐसे बहुत आजकल मिलेंगे आपको कि यूपीएससी का कोचिंग इंडस्ट्री यूट्यूब में ज्यादा रील इंडस्ट्री हो चुका है, इंस्टेड ऑफ ये टीचर्स ज्यादा रीलर्स ही बन चुके हैं, और सिर्फ मोटिवेशनल कोई चीजें वगैरह दो। भाई क्लास ले रहे हो तो भाई कंटेंट पढ़ाओ। अब ऐसे मैं एक यूट्यूब पे एक बंदे का वीडियो देख रहा था, फेमस टीचर एंड रीलर। अब वो बंदा जेंडर इश्यूज का कोई टॉपिक पढ़ा रहा था, एंड व्हाट ही वाज सेइंग जेंडर इश्यूज में, कि एक मेल को, एक मर्द को अगर आप जॉब देते हो, इफ वन मेल गेट्स द जॉब, देन ही मैरीज अ अनएम्प्लॉयड गर्ल, कि कोई जॉबलेस भी लड़की है उससे शादी करेगा कोई मेल जिसके पास जॉब है। तो अगर आप 1000 लड़कों को जॉब देते हो ना, तो वो 1000 जॉबलेस लड़कियों से शादी करेंगे, तो 2000 जॉब क्रिएट होते। लेकिन अगर आप 1000 जॉब लड़कियों को देते हो ना, तो कोई भी लड़की जॉबलेस लड़के से शादी नहीं करेगी, तो सिर्फ 1000 ही जॉब क्रिएट होते। अब इमेजिन करो, ये कंटेंट आप यूपीएससी में लिख रहे हो,
भाई पहले तो आपका पेपर चेक करने वाली अगर औरत निकली ना और उसको आप ये बोल रहे हो कि लड़कियों को जॉब मत दो, अरे क्या पढ़ा रहे हो? और बेसिकली ये कंटेंट यूपीएससी के लायक भी है क्या लिखने के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल ओके, और लायक भी है या नहीं है, पॉइंट क्या है समझो, यूपीएससी लेवल कंटेंट क्या है। अब मेरी वाइफ जॉब करती है, अगर मेरी वाइफ जॉब करती है इसलिए मुझे घर पे खाना बनाने के लिए एक औरत काम पे आती है, ये साफ सफाई क्लीनिंग स्वीपिंग वगैरह उसके लिए एक औरत काम पे आती है। ओके, फिर ये जो सारे मेड्स वगैरह स्वीपर क्लीनर ये सारी आ रही है, तो मुझे मेरे घर पे 3-4 मेड्स आती है। अगर मेरी वाइफ घर पे बैठे तो ये 3-4 औरतों की जॉब खा जाएगी। तो भाई जब एक औरत जॉब करती है ना तो 3-4 जॉब क्रिएट भी कर रही है वो। ओके, तो 1000 औरतों को जॉब दो तो 4000 जॉब क्रिएट हो रहे हैं, लेकिन वही औरत अगर घर पे बैठेगी जॉब ना करके 4 औरतों की जॉब खा लेगी। लॉजिक तो ये भी लग सकता है। तो भाई आप कंटेंट में क्या सुन रहे हो, पहले तो याद रखो कि फर्स्ट आपके सक्सेस में सबसे इंपॉर्टेंट है राइट कोचिंग गाइडेंस। ओके, 33% ही उतना गाइडेंस मैटर करेगा, कोचिंग। उसके बाद इंपॉर्टेंट है सेल्फ स्टडी, हार्डवर्क। कोचिंग भी बहुत लेंगे, सेल्फ स्टडी इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और उसमें भी याद रखना 10-10 घंटे 12 घंटे 14 घंटे पढ़ रहे हो, दैट्स व्हाई आपका यूपीएससी पास होगा, इज जीरो गारंटी। व्हाट मैटर्स सेल्फ स्टडी में, हार्डवर्क में, याद रखना ये वर्ड हमेशा जिंदगी भर याद रखना। ये जो पॉइंट्स अभी बता रहा हूं मैं, यूपीएससी में कंसिस्टेंसी मैटर मोर देन इंटेंसिटी। आप 12-12 घंटे ना भी पढ़ो तो भी चलेगा, लेकिन 6 घंटे भी, लेकिन पूरे साल भर पढ़ो विथ कमिटमेंट विथ कंसिस्टेंसी। वरना यहां पे भी, या राजेंद्र नगर हो या पुणे में भी, सदाशिव पेठ हो, कहीं पे भी एग्जाम जब आएगी ना 2 महीने पहले सारे बच्चे चाय की टपरी से कहीं पे भी दिखेंगे नहीं, सारे मार्केट से गायब, लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे हो। भाई यही जो 2 महीने पहले कर रहे हो ना एग्जाम के, पूरे साल भर करो उस सिंसियरिटी से। डेली लाइब्रेरी में 5-6 घंटे पढ़ो, डेली क्लास करो, जो भी डेली क्लास में पढ़ा है उसका रिवीजन करो। या आप खुद कितना सेल्फ स्टडी हार्डवर्क करते हो, दैट मैटर्स 33%। लेकिन उसमें फिर गाइडेंस भी है और हार्डवर्क भी कर रहे हो, सिंसियरली पढ़ भी रहे हो, स्टिल 33% इज गैप, दैट इज स्ट्रैटेजी। पॉइंट इतना ही है, यू नो हाउ टू रन वेरी फास्ट, गाइडेंस भी मिला, सेल्फ खुद भी बहुत भागना अच्छे से आता है आपको, लेकिन सारे इस साइड भाग रहे, आप उल्टी साइड भाग रहे हो, गलत जगह पे पहुंचे पहले। स्ट्रैटेजी मैटर्स ट्रिमेंडसली। अभी जो मैंने बताया ना, दैट्स द फर्स्ट स्ट्रैटेजी, कि भाई यूपीएससी की प्रिपरेशन चालू कर रहे हो ना तो पहले समझो यूपीएससी की डिमांड क्या है। ओके, तो यूपीएससी में एक्सपेक्ट क्या है आपको, ये पहले जानना, दैट इज स्ट्रैटेजी बेसिकली। ओके, प्रिपरेशन कैसे करना है, कौन से पेपर में कितने मार्क आते हैं। ओके, आप एग्जाम का प्रिपरेशन चालू कर रहे हो तो उससे पहले यूपीएससी ने इस पे कौन से पीवाईक्यूज पूछे है, उसके पीवाईक्यू का एनालिसिस, ये जो सारी चीजें है, दैट व्हाट इज कॉल्ड स्ट्रैटेजी। अब स्ट्रैटेजी पे भी बहुत चीजें मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा आपको। तो इसलिए पहले चीज याद रखना, गाइडेंस, कोचिंग। अब मैंने पहले ही बोला ना कि अभी ना बहुत एक कल्ट चल रहा है सेल्फ स्टडी। या पुणे में आने के बाद तो मुझे बहुत दिखा, और 6-6, 7-7, 8 साल बच्चे सेल्फ स्टडी करते, इतना टाइम बर्बाद करते हैं ना कि 3-3, 4-4 साल तो प्रीलिम ही नहीं निकली, 4-4, 5-5 साल। तो गाइस पहले याद रखना, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अगर ऑलरेडी वो कोचिंग लेके अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं और आप अपनी 2-3 साल सेल्फ स्टडी में बर्बाद कर रहे हो, भाई डोंट वेस्ट टाइम। या 10-10 साल की फैकल्टीज है जिनके पास इतना एक्सपीरियंस है, हु टीच यू ऑल दिस सब्जेक्ट्स इजीली। तो यहां के जो 2.5 घंटे में आप पढ़ोगे ना, वो खुद घर बैठ के 2-3 दिन में भी वो चीजें समझ नहीं पाओगे। और आपको जल्दी, जितने यंग हो, इंटरव्यू पैनल तक पहुंचना है। एंड इफ यू वांट दैट, देन डोंट री इन्वेंट द व्हील। खुद सेल्फ स्टडी करके टाइम वेस्ट करते मत बैठो। और जो आपके कंपटीटर्स है, दे यूज द गाइडेंस। क्यों? तो उसका जस्ट एग्जांपल बताने के लिए, मेरा यूपीएससी का एक मेंटरशिप ग्रुप है, 20-25 बच्चे हैं उस पे। तो पिछले जून में, इस साल के प्री मेंस के लिए वो मेंटरशिप चल रहा है, पिछले जून में एक लड़की ने मुझे मैसेज किया कि सर मुझे मेंटरशिप ज्वाइन करना है। जैसे उसका मैसेज आया तो मैं सब बच्चों के, आपके भी नंबर जब मेरे पास आएंगे, पर्सनल नंबर में स्टोर करता हूं, तो वैसे ही मोबाइल में स्टोर करता हूं। तो उस टाइम मैं दिल्ली में पढ़ा रहा था एक इंस्टीट्यूट में, वो मेरी स्टूडेंट थी, खान स्टडी ग्रुप उसमें। तो मैंने वैसे ही उसका नंबर सेव किया था, केजी स्टूडेंट IND, मतलब इंदौर सेंटर,
कि ईयर कौन सा, 21 की बैच, 22 की बैच। तो मैंने देखा वो 22 के बैच की थी, अभी 25 आया। तो मैंने पूछा यार यू वर इन 21, 22, 23 की बैच में, आज 25, 3 साल कहां पे थी क्लास होने के बाद? तो उसका रिप्लाई था कि सर मेरा 26 में पहला अटेम्प्ट होगा, मैं एलिजिबल ही नहीं थी एग्जाम देने के लिए। बंदी ने फर्स्ट ईयर में सारा कोचिंग करके रखा था एंड देन ग्रेजुएशन कंप्लीट किया कॉमर्स का, और 25 में कंप्लीट हुआ, और अब ये फुल 1 साल प्रिपेयर करके 26 का पहला प्रीलियम वो देगी। और बंदी ने इतना अच्छा कोचिंग करके, मेंटरशिप मेरी पूरी साल लेके, इतना आंसर राइटिंग करके कमांड उसका लाया है ना, कि अगर इस बंदी की प्रीलियम इस साल क्रैक होती है ना, वो 100% टॉप 100 रैंक में ही रहेगी, वो नीचे का भी रैंक नहीं। बट पॉइंट इज, इतने कैलकुलेटेड बंदे जो प्रिपेयर करते हैं। वन ऑफ माई कजिन, उसने 11th-12th में यूपीएससी का फाउंडेशन कोर्स किया था, फिर 4 साल सीओईपी में थी, कोचिंग किया 4 साल, एंड देन शी वेंट फॉर द कोचिंग के बाद फुल 1 साल प्रिपेयर करके पहला अटेम्प्ट दिया। अनफॉर्चुनेटली प्रीलियम नहीं निकली, सेकंड अटेम्प्ट में प्रीलियम निकली, मेंस निकली, इंटरव्यू, ऑल इंडिया रैंक 11, महाराष्ट्र की टॉपर भी थी उस साल। सेम वे मेरे वाइफ ने कॉलेज के बाद 2 साल शी प्रिपेयर फॉर, शी डिड द जॉब, उसका जो एजुकेशन लोन वगैरह वो सारा नील करने के लिए। 2 साल के बाद ओके, अगस्त सितंबर में उसने कोचिंग ज्वाइन किया। 3-4 महीने तो उसका कोचिंग ऑलरेडी वो जून जुलाई अगस्त के 3-4 महीने के लेक्चर मिस हो गए थे। उसके बाद भी कोचिंग करके पहला अटेम्प्ट ऐसे ही दे दिया। पहले ही प्लान था 6-7 अटेम्प्ट नहीं देने, 2-3 ही देने, निपटा देने। पहले अटेम्प्ट उसने दे दिया, उस साल प्रीलियम नहीं हुई, नेक्स्ट ईयर प्रीलियम हुई, मेंस नहीं हुआ, थर्ड टाइम प्रीलियम, मेंस, इंटरव्यू, फाइनल पोस्ट। सो स्ट्रैटेजी से ठीक से प्रिपेयर करो। अभी से सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हो, थर्ड ईयर में पढ़ रहे हो, लास्ट ईयर में पढ़ रहे हो वगैरह, कोचिंग वगैरह करके गेट प्रिपेयर्ड, और फिर 1 साल अच्छे से प्रिपेयर करके गिव योर अटेम्प्ट सिंसियरली। अब बहुत सारे बच्चे अभी जो चल रहे हैं ना, कि इसी पे टाइम वेस्ट करते हैं, सेल्फ स्टडी, चीजें समझने में, खुद किताबें पढ़ने में। भाई आपकी एनर्जी स्पेंड ऑन हायर लेवल जॉब, इथिक्स का आंसर राइटिंग, एसए का राइटिंग, ओके, ऑप्शनल का आंसर राइटिंग। बाकी लोग अगर 50 एमसीक्यू के पेपर सॉल्व करें प्रीलियम के लिए, यू सॉल्व 100 एमसीक्यू के पेपर। लेकिन स्पेंड योर एनर्जी ये हायर लेवल जॉब पे, ना कि बेसिक चीजों पे। खुद के जितना रेडीमेड कंटेंट मिल रहा है पढ़ लो एंड मूव ऑन। और उसमें भी देखना, आप जो भी चीज पढ़ रहे हो, अभी यूट्यूब पे इतना ये मसाला कंटेंट अवेलेबल है ना, या अब मेरा भी यूट्यूब चैनल है, यूपीएससी गाइड का भी है, लेकिन हम यूट्यूब पे फ्री में कौन से कंटेंट डालते हैं? मोस्टली जस्ट प्रमोशन के लिए। और उसमें भी मैंने जो अभी एग्जांपल बोला कि वीमेन को जॉब मत दो, इस तरह के एग्जांपल, ऐसा फालतू का कंटेंट। सो ज्यादा यूट्यूब पे रीलर ही बन चुके, एजुकेटर कम है। सो उसके लिए व्हाट यू नीड इज अ प्रोफेशनल सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। आपको सब्जेक्ट ठीक से पढ़ाने वाला चाहिए। एंड सेकेंडली, और बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में क्या होता है कि कॉस्ट कटिंग करनी है तो फिर किसी भी फैकल्टी को लाके आके खड़े कर दो। यूपीएससी गाइड में वो बिल्कुल नहीं होगा। एज लॉन्ग एज आई एम रनिंग ऑल दिस प्रोग्राम्स वगैरह, सारी फैकल्टी हमारी मोर देन 10 ईयर एक्सपीरियंस, एक्सट्रीमली क्या कहते हैं उसे, वेल एक्सपीरियंस वाली, और प्रोफेशनल सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट सारे लोग। और उसमें अब इसके बाद आप जो कोचिंग भी कर रहे हो, कंसिस्टेंटली आपके फीडबैक एंड इवेल्युएशन, ये पार्ट आपको काम कर रहा है कि जो भी पढ़ रहे हो, अब आप मोस्ट ऑफ यू आप क्लास भी करोगे, लेकिन सैटरडे संडे जो आपकी टेस्ट होगी, यू विल नॉट अपीयर फॉर द टेस्ट। और जब तक टेस्ट को अपीयर नहीं होते ना, यू विल नेवर अंडरस्टैंड आपका खुद का नॉलेज गेन कितना हो चुका है। हाँ, इफ यू आर डूइंग कॉलेज एक्सेट्रा, एग्जाम वगैरह चल रही है, यू कुडंट गिव द टेस्ट, चल जाएगा। बट मोस्ट ऑफ द टेस्ट वो अटेम्प्ट करना, उस पर फीडबैक लेना, फैकल्टी के इवेल्युएशन, ऑनलाइन हो तो फोन पे वी विल कनेक्ट, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो कोचिंग को अगर इफेक्टिव बनाना है, देन यू नीड टू फोकस ऑन दोज वीकली टेस्ट। ऑब्जेक्टिव प्रीलियम की टेस्ट हो तो ऑब्जेक्टिव होगी, मेंस का रिलेटेड हो तो डिस्क्रिप्टिव, उसका इवैल्यूएशन आंसर राइटिंग आई विल गिव। लेकिन तभी आपको समझ में आएगा कि वेयर यू आर स्टैंडिंग। सो बहुत कंपल्सरी ये सारे टेस्ट आपको देने पड़ेंगे। एंड उसके बाद आपकी कन्वीनियंस है, ऑफलाइन ऑनलाइन, तो हम तो दोनों ऑफलाइन क्लास ही स्ट्रीम करते हैं, तो वो आपके कन्वीनियंस है। बट जनरली जब भी पॉसिबल हो, जिन्होंने हाइब्रिड मोड ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों एडमिशन लिया है, ओके, तो जब भी पॉसिबल हो ऑफलाइन क्लास में आके बैठो, तो ज्यादा टीचर के साथ कनेक्ट कर पाओगे, बॉन्ड हो जाएगा, उनके पर्सनल नंबर मिलेंगे, यू विल बी एबल टू देन
गेट इन टच विद देम, या यहाँ आके यू विल बी एबल टू गेट टच विद मी, तो आपको जो फीडबैक या अपडेट रहना ज्यादा पॉसिबल होगा. फिर उसके बाद, सो मोर यू स्वेट इन टाइम्स ऑफ पीस, द लेस यू ब्लीड इन वॉर. एंड दैट्स व्हाई द नेक्स्ट पार्ट दैट मैटर्स इज कंसिस्टेंसी. भाई साल भर कुछ नहीं किया एंड एंड में फिर 3-4 महीने बहुत प्रीलियम की पढ़ाई कर रहे हो, 10-10-12 महीने, नॉट गोइंग टू हेल्प. सो बेसिकली कोचिंग तो हुआ, सारे टॉपिक अच्छे से समझ लिए, उसके बाद भी ओके आपका पार्ट वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. एंड आई टोल्ड यू इन दिस एग्जाम व्हाट मैटर्स इज नॉट इंटेंसिटी, व्हाट मैटर्स इज कंसिस्टेंसी. व्हाट डिड यू डू फॉर ईयर दैट मैटर्स, नॉट फॉर डेज. ओके, तो आप साल भर भी, अब अभी आप अगर कॉलेज कर रहे हो या जॉब में हो, सो एटलीस्ट आपको इतना करना है कि डेली जो लेक्चर्स दैट वी विल बी टीचिंग, रिवाइज दोस लेक्चर डेली. ओके, और जो डेली लेक्चर देख रहे हो उसके बाद एटलीस्ट उसको देखने के बाद रिवाइज करो, क्लास के साथ रहो. ओके, इफ यू आर वॉचिंग द लेक्चर्स और लेक्चर्स आगे निकल गए एंड यू आर नॉट एबल टू कीप अ ट्रैक, तो फिर जो पढ़ाया जा रहा है यू विल नॉट बी गेटिंग दैट, वो भी समझ में नहीं आएगा और पहला वो पूरा सेगमेंट ही आपका विल गो वेस्ट. वैसे इन सबके रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको रहेंगे, आप बाद में भी वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख सकते हो, बट द पॉइंट इज डेली एटलीस्ट लेक्चर रिवाइज करो. और लेक्चर वीकली कोई मिस हो गया तो एटलीस्ट सैटरडे संडे उसको क्विकली ऑनलाइन देख के रिवाइज करके कवर इट अप. तो जिस जैसे आपका साल भर कोचिंग खत्म होता जाएगा, ओके, बी इन द प्रोसेस. ओके, अलॉन्ग विद द कोचिंग फिनिश द आपका ये पूरा सिलेबस, सारे टॉपिक समझ तो लो फर्स्ट ऑफ ऑल. सो कंसिस्टेंसी एंड देन आपका ग्रुप स्टडी, ये भी चीज बहुत मैटर करती है. दैट एंड दैट्स व्हाई जनरली आई प्रीफर सजेस्ट स्टूडेंट्स की ऑफलाइन में कोचिंग करना. यू गेट अ गुड फ्रेंड्स एंड सिंसियर फ्रेंड्स एंड देन उनके साथ बैठ के यू नीड टू कीप स्टडी. अब खुद एक दूसरे को टारगेट दो कि डेली हमें वी हैव टू फिनिश दिस मच, डेली ये किताब के इतने पेजेस खत्म करने, और रात को फिर आधा एक घंटा बैठ के वी विल आस्क ईच अदर क्वेश्चंस. सो ये सारा पार्ट, इसलिए ग्रुप स्टडी ऑल्सो मैटर्स लॉट. जो आपका खुद के एफर्ट्स का पार्ट है उसमें ग्रुप स्टडी. और ये जो मैंने आपको बताया कि कंसिस्टेंसी, व्हाट डिड यू डू फॉर ईयर दैट मैटर्स नॉट फॉर डेज. जस्ट उसका एक एग्जाम्पल बताने के लिए कि मेरी वाइफ का मेंस का एग्जाम था अगले वीकेंड को. शी वॉज टू गो टू मुंबई फॉर एग्जाम, और 7-8 दिन पहले, और उसका पढ़ाई में टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने मेरी माँ को बुलाया था कि टू घर का सारा चीज देखो. तो मेरी माँ ही 1-2 महीने पहले आके रुकी थी, और उस दिन मुझे मेरे फ्रेंड्स का मूवी का प्लान बन गया, तो मैं मूवी के लिए निकल गया. अब उनको लगा कि अब मैं 3 घंटे नहीं आऊंगा, बट मेरा मूवी का प्लान कैंसिल हुआ, मैं 5-10 मिनट में वापस आया. और तब तक अगले महीने एग्जाम के मेंस के बाद मेरे एक मामा के बेटे की शादी थी, और मेरी माँ और माय वाइफ सारी साड़ियां निकल के दे वर प्लानिंग कि व्हाट दे विल वियर फॉर द वेडिंग. तो मैंने उनको इतना डांटा कि भाई 1 हफ्ते के बाद मेंस का एग्जाम है यूपीएससी का एंड यू आर वेस्टिंग दिस टाइम. लेकिन उसी साल उसका मेंस भी निकला, इंटरव्यू भी निकला, पोस्ट भी मिली. पॉइंट इतना ही था कि 1 हफ्ते पहले आप एग्जाम के पहले क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो, दैट डजंट मैटर. व्हाट मैटर्स इज पूरे 1 साल आपने क्या किया. सो कंसिस्टेंसी एंड ग्रोथ एंड प्रोग्रेस, एंड कंसिस्टेंटली खुद का ग्रोथ ट्रैक अगर करना है आपको कोचिंग के बाद, तो इसके लिए आपको टेस्ट सीरीज ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है. प्रीलियम क्या हो, मेंस का हो, जब टेस्ट पेपर दोगे तभी समझ में आएगा खुद का प्रोग्रेस. और दूसरों के साथ बैठ के पढ़ो, जनरली लाइब्रेरी वगैरह में, तो आपको समझ में आता है हाउ मच अदर स्टूडेंट्स प्रिपेयर, कितने सिंसियरली पढ़ रहे वगैरह, उनके स्कोर कितने आ रहे हैं, मेरे कितने आ रहे हैं. डोंट स्टडी इन आइसोलेशन, कभी अकेले घर पे बैठ के वगैरह. ओके, या फिर आपका अच्छा ग्रुप हो तो घर पे बैठ के भी चलेगा. तो मेरी वाइफ ने भी शादी के बाद घर पे बैठ के प्रिपरेशन की थी, और उसके 2-3 फ्रेंड्स थे, उनका काफी अच्छा ग्रुप था. तो ये भी छोटी छोटी चीजें बहुत मैटर करती है. इट्स नॉट ओनली अबाउट कोचिंग, ये सारी चीजें यू हैव टू फोकस अपॉन. एंड देन डोंट अनस्टडी, डोंट स्किप एनी पार्ट ऑफ सिलेबस. मतलब क्या कि सी यूपीएससी में कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक रूल है, इट्स अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम. कॉम्पिटिटिव और आपके नॉर्मल कॉलेज के एग्जाम में फर्क क्या है, इंजीनियरिंग के या जो भी आपका डिग्री है. भाई आपके फ्रेंड को 80% आ गए इंजीनियरिंग में, आपको 41% आ गए, सारे बैकलॉग्स कोई रहा नहीं, सारे पेपर पास हो गए.
डिग्री आपको भी मिलने वाली, डिग्री उसको भी मिलने वाली। उसकी डिग्री पे डिस्टिंक्शन लिखा जाएगा, आपकी डिग्री पे क्या कहते हैं सेकंड क्लास वगैरह कुछ लिखा जाएगा। जॉब उसको भी मिलेगी, आपको भी मिलेगी, उसको ज्यादा पैकेज की मिलेगी, आपको कम पैकेज की, बट ऑल ऑफ यू विल गेट द जॉब। भाई यूपीएससी में दैट्स नॉट द केस, या कोई भी कंप्यूटर एग्जाम में। अगर आपके फ्रेंड को 80 आते हैं तो आपको 81 चाहिए, 60 आते हैं उसको तो 61, और उसको 40 आते हैं तो आपको 41। यू नीड टू स्कोर मोर देन अदर्स। और इफ यू वांट टू स्कोर मोर देन अदर्स तो उसका एक बेसिक रूल है, राइट मोर देन अदर्स, ओके। एंड राइट मोर देन अदर्स मतलब क्या? यूपीएससी में क्वेश्चन आया, हमने तो आपको पढ़ा दिया क्लास में सब कि 1857 रिवोल्ट क्वेश्चन आया, व्हाट वेर द रीजंस फॉर 1857 रिवोल्ट। तो दूसरे बच्चे अगर 7 to 8 रीजंस लिखेंगे ऑफ 1857 रिवोल्ट, यू राइट 13 to 14 रीजंस, बट दैट 1 or 2 एक्स्ट्रा मार्क फॉर दोज एक्स्ट्रा रीजंस इज व्हाट चेंजेस द गेम। लेकिन हर जगह पे ये पॉसिबल नहीं है कि आप एक्स्ट्रा लिख पाओगे, तो ऐसे क्वेश्चन में कुछ हटके लिखो, एंड आई विल टेल यू ऑल दिस स्ट्रेटेजी जैसे हम आगे पढ़ते जाएंगे। और उसी का एक पार्ट है फिर कि अगर आपको यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करना है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है याद रखना, मेंस में किसी भी पेपर में आपका एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। अगर 6 पेपर में जीएस 1 2 3 4 एंड ऑप्शनल के 2, इफ यू आर नॉट सॉल्व यू वन क्वेश्चन, अंडरस्टैंड, इफ यू आर नॉट सॉल्व वन क्वेश्चन इन 6 पेपर्स, 20 मार्क का हर एक क्वेश्चन पकड़ लो, तो यू हैव नॉट सॉल्व 120 मार्क का पेपर। और 120 मार्क के पेपर में आप कुछ भी लिखते थोड़ा बहुत, और आपको हर क्वेश्चन में 3-4 भी मार्क आए, आउट ऑफ 20 10 नहीं आए, 9 नहीं आए, बट आउट ऑफ 20 यू गॉट 4 to 5 मार्क्स, तो 6 क्वेश्चन में 30 मार्क्स पूरी जिंदगी बदल देता है, आई एम टेलिंग यू। और इसलिए ये जो आपके, अगर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है ना, तो यू कांट पुट एनी पार्ट ऑफ सिलेबस के ऑप्शन कि भाई इसको मैं नहीं पढ़ूंगा। इंजीनियरिंग में चल जाता है, मैंने खुद इंजीनियरिंग किया है, एक आध यूनिट बहुत डिफिकल्ट होता था, तो इंजीनियरिंग के बुक्स में 5 यूनिट्स होते थे, 20-20 मार्क को क्वेश्चन आएंगे। एक आध यूनिट इतना डिफिकल्ट होता था कि हम पूरा छोड़ देते थे, लेकिन 4 यूनिट इतने अच्छे करो कि 80 में से 40 मार्क तो आ ही जाएंगे। दैट्स यूज्ड टू बी द अप्रोच थ्रू आउट इंजीनियरिंग में। लेकिन यहां पे आप कोई भी पार्ट सिलेबस का बिना पढ़े नहीं जाओगे, एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो पढ़ो कि क्वेश्चन आया ना तो कुछ तो लिख पाओगे, 3-4 मार्क्स तो आएंगे। लेट मी टेल यू गाइस, सारे टॉपर जो है ना, दे सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन। अगर आपका एक आध क्वेश्चन छूट गया ना, यू माइट गेट द इंटरव्यू का कॉल, रैंक भी मिल जाएगी मे बी, लेकिन बहुत नीचे का रैंक, 800-900। आईएएस आईपीएस आईआरएस में पोस्टिंग चाहिए, देन यू हैव टू एंश्योर पूरे टॉप रैंक में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए अगर टॉप रैंक चाहिए तो। व्हाई? अब अंडरस्टैंड, मेरे इसका वाइफ ने 1750 मार्क, आई टोल्ड यू, एसए का 250 मार्क का पेपर एंड जीएस 1 2 3 के 6 पेपर एंड ऑप्शनल, 1750 मार्क के पेपर में उसने 1747.5 मार्क का पेपर सॉल्व किया था। एक ही 2.5 मार्क का क्वेश्चन दैट्स शी कुडंट सॉल्व। तो हिस्ट्री में ऑप्शनल में मैप प्लॉटिंग करके क्वेश्चन आता है कि आपको मैप पे 20 लोकेशन देते हैं, 2.5 मार्क को प्लॉट करनी होती है। एक लोकेशन उसको समझ में नहीं आ रही थी कि इसका नाम ऐसा था कि वो तमिल वर्ड है, बंगाली वर्ड है, कश्मीरी वर्ड है, पंजाबी वर्ड है, कि तुक्का भी मारने के लिए शी कुडंट। अदरवाइज 1700 मार्क 1747.5 मार्क का पेपर शी सॉल्व। सारे टॉपर सारा पेपर सॉल्व करते। दैट्स व्हाई डोंट अनस्टडी, डोंट स्किप एनी पार्ट ऑफ सिलेबस एंड अंडरस्टैंड एंड डोंट डू मगिंग। और जो भी चीजें पढ़ रहे हो ना, कभी भी रट्टा मार के कोई चीज नहीं पढ़नी है। हाँ, थोड़े बहुत फैक्ट्स होंगे, बट ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मोस्ट ऑफ द चीजें कंसेप्चुअल है। वो कंसेप्ट समझो, खुद ही पूछो सर ऐसा क्यों है, क्लास में पूछो, नहीं तो मुझे बाद में आके पूछो कि सर ये समझ नहीं आ रहा है ऐसा क्यों है। अब जब मैं अपने क्लास पढ़ाना चालू करूंगा तो मेरा जो लैपटॉप है उसका वॉलपेपर आप जब देखोगे ना, वॉलपेपर के 2 ही वर्ड है, क्वेश्चन एवरीथिंग। जिंदगी भर आपको यही करना है यूपीएससी में, कोई भी चीज मगअप नहीं करे, ऐसा क्यों, ये ऐसा क्यों, ये ऐसा क्यों। लेकिन कंसेप्चुअली पढ़ोगे ना तो डबल चीजें नहीं पढ़नी पड़ती, मगअप नहीं करना पड़ता। एंड दैट्स व्हाई, और यूपीएससी को जिस तरह का उनका जो सिलेबस चेंज हुआ है, उनको क्या एक्सपेक्ट है, दैट रीजनिंग स्किल, एनालिटिकल स्किल, अंडरस्टैंडिंग,
मल्टी डायमेंशनल अंडरस्टैंडिंग, इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग, तो उस पर आपको फोकस करना है। और इसी का जो मैंने बोला कि जो सिलेबस बदला उन्होंने, ये बिना समझे जब चीजें करते हैं। अब यूपीएससी में पहले क्या था, ऑप्शनल पेपर था प्रीलिम में। अब बच्चे क्या करते थे, जो पुराना सिलेबस था, ऑप्शनल में ही 200 में से 150 मार्क लाएंगे, और जीएस का जो पेपर था 200 मार्क का, उसमें 50-60 भी मार्क आ गए तो भी 200 के ऊपर कट ऑफ, प्रीलिम पास। यूपीएससी को यही नहीं चाहिए था, तो उन्हें लाया सीसेट का पेपर। अब क्या होने लगा, बहुत सारे बच्चों को सीसेट में मार्क नहीं आते थे, रट्टा बहुत अच्छे से मारते थे वो, जीएस में मार्क आ जाए बट सीसेट में मार्क नहीं आते थे, तो इन्होंने बहुत प्रोटेस्ट किए। अब एक बात होती है कि पैर पे कुल्हाड़ी मारो, दूसरी बात है कुल्हाड़ी पे पैर मारो। इन्होंने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने की जगह पे कुल्हाड़ी पे पैर मारा। नाउ व्हाट हैपन, पहले क्या होता था कि किसी बंदे का सीसेट वीक है तो उसको आ गए 80 मार्क सीसेट में, या लेट्स से 60 मार्क आ गए सीसेट में, लेकिन जीएस बहुत स्ट्रांग है, उसका रट्टा बहुत अच्छे से मारा है, फैक्ट्स अच्छे से पता है, जीएस में आ गए 120 मार्क, 120 प्लस 60 180, कट ऑफ के ऊपर 160 170 के कट ऑफ लगते थे, वो मेंस लिख तो सकता था। लेकिन बच्चों ने बहुत प्रोटेस्ट किए, तो यूपीएससी ने भी प्रोटेस्ट में, गवर्नमेंट का प्रेशर आया तो यूपीएससी ने बोला ठीक है, उनकी डिमांड थी सीसेट हटाओ। यूपीएससी सेट सीसेट तो नहीं हटाएंगे, बट यूपीएससी सेट उसको क्वालिफाई करते हैं। तो इस सीसेट में 66 मार्क्स लाने होंगे, और अगर ये मार्क आ गए 66 के ऊपर तो ही जीएस का पेपर वी विल इवैल्यूएट। अब ऑटोमेटिकली क्वालिफाइंग मार्क जो 66 लाने हैं, ये बंदों ने इतना डिफिकल्ट पेपर बना दिया यूपीएससी का, सीसेट का, कि 66 क्वालिफाई होने नहीं दे रहे। अब किसी बंदे को भले जीएस पेपर में 120 मार्क आ रहे हो, लेकिन सीसेट में आ गए 60 मार्क, उसका पेपर ही चेक नहीं होगा। पहले अगर सीसेट के मार्क काउंट होते थे ना, तो भाई 60 मार्क आपके आ गए, जीएस में अच्छे स्कोर परफॉर्म करो, मेंस लिख तो सकते थे। इन्होंने सारे लोग ही उड़ा दिए, तो प्रीलिम में सीसेट ही आपका कंपटीशन इतना कम कर देता है। दैट्स व्हाई डोंट टेक सीसेट लाइटली, वो भी आपको अलग से पढ़ना है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग यूपीएससी सिलेबस इसलिए बदला था, उनको रट्टा मारो लोग नहीं चाहिए थे, और सिलेबस बदलने के बाद आप इसीलिए प्रोटेस्ट कर रहे हो कि भाई सीसेट हटाओ और पुराना सिलेबस रखो। यूपीएससी वाज नॉट गोइंग टू डू दैट। उनको आपके लिए एग्जाम कंडक्ट नहीं कर रही यूपीएससी खुद के लिए एग्जाम कंडक्ट कराए। उनको जो ब्यूरोक्रेट चाहिए देश चलाने के लिए, तो उनको जो स्किल चाहिए थे, उन्होंने सिलेबस वैसे बना दिया। आप ये नहीं बोल सकते यूपीएससी कि हमें सीसेट नहीं आता तो सिलेबस ऐसा मत बनाओ। आपको सीखना पड़ेगा। यूपीएससी कांट रिस्क कंट्री का फ्यूचर वेदर यू अंडरस्टैंड सीसेट और नॉट, या आपके पास वो रीजनिंग एबिलिटी है या नहीं है। तो जो भी डिमांड है, पहले एग्जाम की डिमांड समझो एंड प्रिपेयर करो। एंड इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो लास्ट बचती है, तो कोचिंग भी हो, आप सेल्फ स्टडी कर भी रहे हो, उसके बाद स्ट्रैटेजी। अब बहुत सारी स्ट्रैटेजीज है जो अभी मैं बता रहा हूं, ये सारी स्ट्रैटेजीज ही है। उसके बाद भी हर सब्जेक्ट की इंडिविजुअल स्ट्रैटेजीज आएंगी। 4 तारीख को मैं जब सिलेबस डिस्कस करूंगा, मैं आई विल डिस्कस फ्यू मोर स्ट्रैटेजीज। जब मैं अपने सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, इथिक्स, ऐसे इंडियन सोसाइटी वगैरह, आई विल डिस्कस फ्यू मोर स्ट्रैटेजीज। हर फैकल्टी अपने अपने सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजीज बताएंगे, बट दैट मैटर्स ट्रिमेंडसली। स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी। डोंट डू डोंकी वर्क, मैंने पहले ही बोला, स्मार्ट वर्क करो, डोंट डू द हार्ड वर्क। ओके, और इसमें फिर स्ट्रैटेजी जाननी है ना, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लिसन यूपीएससी टॉपर की इंटरव्यू। नाउ वी विल गिव यू एक्सेस ऑफ बहुत सारे टॉपर्स के मॉड्यूल्स का, तो वो भी देखो उन्होंने कैसे प्रिपेयर किया, उन्होंने क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस किए। अब अंडरस्टैंड, इवन हम इतने साल से पढ़ा रहे हैं ना, लेकिन हमें भी टॉपर्स की इंटरव्यू से बहुत सारी चीजें समझ में आती है। अब यहां पे हमने स्टेट सिविल सर्विसेज के टॉपर को बुलाया था, उनका एक सेशन रखा था कि उन्होंने कैसे प्रिपेयर किया। और वो सेशन जब मैं भी बैठ के उनके साइड में बैठ के सुन रहा था, तो उन्होंने एक पॉइंट बताया, मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं अब यूपीएससी गाइड का नया कोर्स उस हिसाब से डिजाइन करने वाला हूं। तो उन्होंने क्या बोला कि उन्होंने जब एनसीईआरटी की पढ़ाई की, तो एनसीईआरटी पढ़ने के बाद वो एनसीईआरटी पे एमसीक्यू प्रैक्टिस ही यूज्ड टू डू। तो बोले उन्होंने फायदा क्या हुआ, उन्होंने पॉइंट बोला कि एनसीईआरटी में जो किताब में पढ़ा, 5 पेजेस पढ़े, उसमें आप अपने एमसीक्यू प्रैक्टिस किया। ही सेड कि वो जो एमसीक्यू प्रैक्टिस किया ना, तो मुझे ये समझ में आता था कि एमसीक्यू जो भी है एनसीईआरटी के या बाकी किसी सब्जेक्ट के, वो उसी क्वेश्चन से आए, उन्हीं पेजेस से फ्रेम हुए। तो वो पेजेस पढ़ के भी अगर मेरा एमसीक्यू गलत हो रहा है, दैट मीन्स आई एम नॉट रीडिंग द पेजेस प्रॉपरली।
और अगर मेरे एमसीक्यू सही बन रहे तो मैंने जो भी पढ़ा ठीक से पढ़ा या वो कंसेप्ट भी ठीक से समझ में आए. अब दैट वाज वेरी गुड पॉइंट ही टोल्ड. तो अभी मैं जो प्लान करने वाला हूं आगे आपके कोर्स के में भी मॉड्यूल में, कि आपको जो भी टॉपिक पढ़ाए जाएंगे ना, टेस्ट पेपर में उसी से ही पहले क्वेश्चन आएंगे. आपका जो इवैल्यूएशन होगा और वो जो क्वेश्चन आएंगे ना, वो अगर आप गलत करते हो तो आपको समझ में आएगा कि आप जो पढ़ रहे हो किताब में, यू आर डूइंग इट रॉन्ग. ओके, और वो अगर सही बन रहे हो तो एटलीस्ट जो पढ़ रहे हो आप सही ट्रैक पे पढ़ रहे हो. तो ये छोटी छोटी चीजें होती है कि टॉपर के इंटरव्यू से आपको समझ में आती है कैसे प्रिपेयर कर रहा है. किसी टॉपर को इथिक्स में प्रॉब्लम होते हैं, ऐसे में होते हैं, वो वीडियो से यू गेट लॉट ऑफ आइडियाज. लेकिन ऐसी स्ट्रैटेजी हम भी क्लास में इतनी बताएंगे कि टॉपर के इंटरव्यू नहीं भी देख पाए, नॉट एन इशू. स्ट्रैटेजी वीडियो, देन ओरिएंटेशन लेक्चर, ये पहले अटेंड करो. ये जो अभी मैं ले रहा हूं ओरिएंटेशन लेक्चर, आगे 3-4 दिन और ओरिएंटेशन लेक्चर दूंगा. अब बहुत सारे आप में से कुछ होंगे जिन्होंने ऑलरेडी कहीं पे क्लास किया. यू आस्क योरसेल्फ कि भाई आप पे ओरिएंटेशन लेक्चर हुए थे या नहीं. क्योंकि अगर ये ओरिएंटेशन लेक्चर में ये सारे डिस्कशन नहीं हुआ ना, तो आगे जो प्रिपेयर कर रहे हो कंटेंट डायरेक्टली विल बी ऑफ नो यूज. तो पहले ये ओरिएंटेशन लेक्चर जानना, एग्जाम का सिलेबस क्या है, डिमांड क्या है, क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, दैट मैटर्स मोर. एंड देन अंडरस्टैंड नीड फॉर एग्जाम, जो मैंने अभी आपको बताया, क्यों सिलेबस बदला है, उनको कैसे ब्यूरोक्रेट एक्सपेक्ट है, क्वेश्चन का ट्रेंड कैसा है. ओके, ये समझो किस टाइप ट्रेंड में क्वेश्चन आ रहे हैं. देन एमसीक्यू प्रैक्टिस, स्ट्रैटेजी में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू प्रैक्टिस. क्योंकि गाइस प्रीलियम, मैंने बोला कि प्रीलियम इज वेरी डायनेमिक, कहीं से भी 100 क्वेश्चन आएंगे, बहुत वास्ट सिलेबस है. तो क्वेश्चन कहां से आएंगे नो वन कैन प्रिडिक्ट. तो ये प्रीलियम क्रैक करने के लिए एक ही स्ट्रैटेजी है, एमसीक्यू प्रैक्टिस. कम से कम 80-100 पेपर आपको एमसीक्यू के सॉल्व करने पड़ेंगे, 8-10 हजार. लेकिन आप जब ये क्वेश्चन एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हो ना, तभी आपको समझ में आता है कंसेप्चुअल बिटवीन द लाइन रीडिंग. मतलब क्या, जस्ट टू गिव यू एग्जांपल, कि ये गांधी का, अब आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो हिस्ट्री में स्वदेशी मूवमेंट हुआ था 1905, लाल बाल पाल, लाला लजपत राय, बाल गंगाधर तिलक वगैरह, बिपिन चंद्र पाल वगैरह, इन्होंने स्वदेशी मूवमेंट किया. 1919 में गांधी ने भी स्वदेशी मूवमेंट किया. लेकिन इनका जो मूवमेंट था लाल बाल पाल, उनके वाला स्वदेशी, उसका कुछ इंपैक्ट ही नहीं हो पाया. कर्ज ने सारे लोग जेल में डाल दिए, इंडिया वाज पॉलिटिकली डेड. बंगाल का पार्टीशन रोकने के लिए उन्होंने ये स्वदेशी मूवमेंट किया, वो भी रोक नहीं पाए. लेकिन गांधी ने जब स्वदेशी मूवमेंट किया, ओके, ब्रिटिश को मिलिट्री बुलानी पड़ी टू टेक ओवर द रेलवेज एंड टेलीग्राफ, वरना सारा कम्युनिकेशन डिस्टर्ब हो जाता, करोड़ों लोग सड़क पे थे. तो भाई स्वदेशी आइडिया तो दोनों की थी, गांधी की वजह से करोड़ों लोग सड़क पे क्यों आए? वाई गांधी वॉज द मास लीडर. पहले नेताओं को यह पॉसिबल क्यों नहीं हुआ? अब ये जब आप स्वदेशी किताबों में पढ़ोगे ना, तो आपको दोनों जगह पे स्वदेशी वर्ड आएगा. लाल बाल पाल के इसमें भी स्वदेशी है, गांधी के इसमें स्वदेशी. भाई गांधी के स्वदेशी में क्या अलग है? लेकिन जब एमसीक्यू सॉल्व करते हो तो आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो कि गांधीयन स्वदेशी, उस पर फिर नीचे सब क्वेश्चन आया कि कौन से स्टेटमेंट गांधीयन स्वदेशी के बारे में करेक्ट है. और उसमें पहला स्टेटमेंट कि गांधीयन स्वदेशी वाज बाइंग एनीथिंग मेड इन इंडिया स्टेटमेंट. अब वो आप आंसर करेक्ट करते हो, फिर एमसीक्यू चेक करते हो, समझ में आता है गलत हुआ वो. देन यू स्टार्ट थिंकिंग भाई ये गलत क्यों हुआ, तभी आपका वो कंसेप्ट क्लियर हो जाता है. सो बेसिकली पॉइंट इतना ही है कि गांधी ने जब स्वदेशी बोला, लाल बाल पाल ये जो पहली मूवमेंट थी स्वदेशी, उनका मतलब स्वदेशी का इतना ही था कि स्वदेशी मतलब वो कपड़ा खरीदो जो इंडिया के मिल्स में बना. तो इतना ही हुआ, जो पैसा मैनचेस्टर जो ब्रिटिश के मिल ओनर के पॉकेट में जाता था, वो गुजरात मुंबई के मिल ओनर के पॉकेट में जाने लगा. इतना ही हुआ, ब्रिटिश कैपिटलिस्ट की जगह पे इंडियन कैपिटलिस्ट आ गए. पैसा उनके इंडस्ट्रियलिस्ट के पॉकेट में जाता था, वो इंडिया के इंडस्ट्रियलिस्ट के पॉकेट में जाने लगा. इंडिया का एवरेज गरीब और भिखारी आदमी गरीब और भिखारी ही रहा, उसकी लाइफ में कुछ बदला ही नहीं. लेकिन गांधी जब आए, गांधी ने जब स्वदेशी बोला, तो गांधी ने स्वदेशी सिर्फ उसी चीज को माना जो मिल में बना कपड़ा नहीं, चरखे पे बना कपड़ा. और इसलिए जब गांधी ने स्वदेशी की बात की, ओके, जो पैसा ब्रिटिश के मिल के ओनर के पॉकेट में जाता था, इंडिया के मिल ओनर्स के पॉकेट में जाता था, वो पैसा जाने लगा जो चरखा चला रहे उन लोगों के पॉकेट में. तो गांधी के लिए स्वदेशी, ये जो टेबल है, वो किसी कंपनी ने बनाया हुआ टेबल मत खरीदो, किसी कारपेंटर ने बनाया हुआ टेबल खरीदो, पैसा वो कारपेंटर के पॉकेट में जाना चाहिए. सो स्वदेशी जो गांधी ने बोला वॉज डिसेंट्रलाइज. तो ये कंसेप्ट तभी समझ में आता है जब आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हो. इफ यू डोंट डू एमसीक्यू प्रैक्टिस, यू विल नेवर बी एबल टू
क्या कहते हैं उसे, अंडरस्टैंड कंसेप्चुअल। इसलिए प्रीलियम के लिए एमसीक्यू प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी, आगे भी इस पे मैं बहुत बात करूंगा। एंड देन फोकस ऑन एग्जाम नॉट प्रीलियम्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे ओनली प्रिपेयर फॉर प्रीलियम, उनका यही गोल होता है प्रीलियम क्रैक करो। और यही मैंने बोला फर्स्ट पॉइंट, आपका सबसे बड़ा टारगेट पूरे एग्जाम में क्या होना चाहिए कि मेरी प्रीलियम जिस साल भी निकले ना, आई शुड बी एबल टू क्रैक द मीन्स। प्रीलियम से पहले मीन्स पे कमांड लाओ, ओके। तो इसलिए फोकस थ्रू आउट पूरे एग्जाम पे सारे स्टेजेस का पहले से प्रिपरेशन करो, प्री का भी, मेंस का भी एंड इंटरव्यू का भी। इवन मेरे वाइफ का ही मुझे याद है कि मेंस लिखने से पहले उसने इतने ऐसे लिखे थे, 32 ऐसे, और मुझसे वो चेक करके इवेलुएट करके लिए थे। उसको इतना अच्छा ऐसे राइटिंग आता था। अभी मैंने जो इंदौर की एक स्टूडेंट का जो एग्जांपल बोला कि वो बंदी ने 22-23 में क्लास किया और मेंटरशिप जब लगाया जून को, तो जून से लेके दिसंबर, अभी के दिसंबर तक 6 महीने उसने एसे, इथिक्स, ऑप्शनल इतना आंसर राइटिंग किया है ना कि अगर उसकी इस साल प्रीलियम निकलती है ना, मेंस निकलने वाली है। इसलिए कभी भी प्रीलियम फोकस प्रिपेयर मत करो। बहुत सारे बच्चे यही गलतियां करते, यही स्ट्रेटेजीज फॉलो नहीं करते। तो अब जब आप प्रिपरेशन चालू कर रहे हो ना, कीप इन माइंड ऑल दिस पॉइंट्स। सो प्रिपेयर फॉर द एग्जाम, इंटरव्यू के स्टेज तक उस हिसाब से प्रिपेयर करो एंड देन इंप्रूविंग ऑन फीडबैक, ओके। और पहले याद रखना, ये चीज मैं लास्ट डे पे फिर से आपको बताऊंगा जब मेरा सबसे लास्ट लेक्चर होगा अपनी सिलेबस का, कि सबसे लास्ट स्ट्रेटेजी मैं लास्ट डे पे बताता हूं। ये स्ट्रेटेजी आज पहले दिन पे ही आपको बता रहा हूं, याद रखना। कभी भी आपका अगर सिलेक्शन होता है ना, इट्स अ वेरी ऑसम न्यूज, जो हमें ऐसे ही पता चल जाती है। हम सारे स्टूडेंट्स के नंबर्स देख ही लेते हैं, फोटो दिख ही जाते हैं, कौन सिलेक्ट हुआ नहीं हुआ। जो सिलेक्ट नहीं हो पाते ना, प्रीलियम फेल हो गई, मेंस फेल हो गई, उनको लगता है यार अब सर को जाके कैसे बताए फेल हो गया प्रीलियम मेंस। गाइज रिमेंबर, इफ यू आर फेलिंग इन द एग्जाम ना, आप यू हैव टेकन एडमिशन, आपने पैसा क्यों दिया है टू गिव द एग्जाम, टू गेट सिलेक्टेड। तो भाई फेल होते हो ना, देन रादर यू शुड बी इन टच विद द फैकल्टी। आओ यहां पे मिलो मुझे, सर फेल हो गया, क्या रीजन है क्या नहीं है। बट मोर यू स्टे इन टच विद द फैकल्टी, ओके, कंटिन्यूअसली फीडबैक लो, फीडबैक पे काम करो एंड इंप्रूव योरसेल्फ। टीचर से दूर मत भागो, कोचिंग से दूर मत भागो फिर, ओके। जितना टीचर के कनेक्ट में रहोगे, फीडबैक लोगे, फीडबैक पे काम करोगे, इट विल इंप्रूव। आइसोलेशन में बैठ के डोंट प्रिपेयर, आई टोल्ड यू पहले ही। अब यही एक स्टूडेंट था, अभी मेरे वाइफ के जब सिलेक्शन हुआ तो मेरी माँ का जो गांव है, हु वाज फ्रॉम दैट विलेज, तो मेरे रिलेटिव्स ने बताया उसका उस साल मेंस, वो भी इंटरव्यू को गया था लेकिन उसका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, उसको ऐसे में कम मार्क आ गए 72 मार्क्स। तो फिर ही टोल्ड, मेरे क्या कहते हैं उसे, वाइफ ने, सॉरी रिलेटिव्स ने टोल्ड हिम कि भाई ये ऐसे कदम सर है, पुणे में जाके मिल ले उनसे। तो बंदा मुझे मिलने आया कि कांटेक्ट किया कि ऐसा ऐसा इश्यू है, मुझे आपका एसे के लिए गाइडेंस चाहिए। तो मैंने बोला आ जाओ। सो मैंने उसे ऐसे लिखने को बोला, वो एक ऐसे लिख के आ गया। वो मैंने चेक किया और उसको मार्क आए थे 250 में से सिर्फ 72 ऐसे में। अब जब मैंने वो ऐसे चेक किया, देन आई रियलाइज, मैंने उसको टॉपिक दिया था कि टॉपिक वाज बिट डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, बट टॉपिक वाज कैपिटलिज्म प्राइवेटाइजेस प्रॉफिट, सोशलाइजेस कॉस्ट, ये टॉपिक था। वो टॉपिक उसने लिख के लाया, उसका ऑप्शनल था पॉल साइंस। अब उसको 2 वर्ड दिख गए, कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म, और पूरा ऐसे कार्ल मार्क्स, एडम स्मिथ, पूरा पॉल साइंस, 400-500 वर्ड सारा पॉल साइंस लिख रहा था। तो मैंने बोला यार 500 वर्ड तक तूने सिर्फ पॉल साइंस लिखा है, तेरा ऐसे 500 वर्ड के आगे चालू हुआ, तो मैं तुझे ऐसे में आउट ऑफ 125 मार्क दूं ही क्यों, मैं 75 में से मार्क दूंगा, 75 में से 30-40 दूंगा, 30-40 दूंगा। ये तो उसका हुआ 70-80 मार्क्स आ गए उसको ऐसे में उस टाइम जो जब वो फेल हुआ। अब ये बंदा, जब मैंने उसको ये चीज एक्सप्लेन की, और ऐसे बहुत इजी था, इसे क्या था लिखना था, बहुत जनरल ऐसे लिखना था, कोई पॉल साइंस लेवल पे, ऑप्शनल लेवल पे लिखना नहीं था। टॉपिक का पॉइंट इतना ही था कि जब ये इंडस्ट्रियलिस्ट है, अंबानी, अदानी, सारे इंडस्ट्रियलिस्ट, दे पे द टैक्सेस एंड आफ्टर पेइंग द टैक्सेस जो भी उनका प्रॉफिट है वो उनका, दे विल नॉट शेयर रुपी विद द कॉमन पब्लिक टू द फॉर द सोसाइटी। लेकिन जब रिसेशन आया 2009 का, अभी भी जो भी रिसेशन आए, दे वेर इन लॉस
ड्यू टू रिसेशन गवर्नमेंट ने क्या किया, उनको बेल आउट किया, उनके लोन्स माफ किए। अब गवर्नमेंट ने उनके लोन कैसे माफ किए, हमने जो पैसा भरा था टैक्स, पेट्रोल पे, डीजल पे, ये टैक्स से क्या होना चाहिए था, हमारे लिए अच्छी सड़कें बननी चाहिए थी, जो गरीब बच्चे उनके लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम रन करो वगैरह। लेकिन इस पैसे से गवर्नमेंट ने क्या किया, इंडस्ट्रियलिस्ट को बेल आउट किया। तो जब वो प्रॉफिट बनाते, प्रॉफिट उनका, जब वो डूब रहे तो कॉस्ट सोसाइटी की। बेसिक ऐसे लिखना था। अब ये बंदे ने फिर फीडबैक लिया, अब उसमें बहुत ह्यूमिलिटी थी फीडबैक पे काम करने की। उसने फिर और ऐसे लिए चेक किए, पेपर को गया, ऐसे का पेपर लिखा और मुझे कॉल किया पेपर से बाहर आके कि सर आई हैव रिटन वेरी गुड ऐसे। सो आई आस्क्ड कौन सा ऐसे लिखा, देन ही एक्सप्लेन मी द टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक ही रिटन गुड, लेकिन सेकंड टॉपिक में आई रियलाइज ही स्क्रूड इट अगेन, सारा पॉल साइंस लिख दिया उसने। आई डिडंट वांट टू डीमोटिवेट हिम, तो मैंने उसको बोला ओके फाइन, गुड गुड गुड। और फिर रिजल्ट आया, उसके 72 के मार्क बन गए 97 98। एक ऐसे में मार्क बढ़ गए, एक ऐसे में बढ़े ही नहीं, फिर पॉल साइंस। फिर मैंने उसको बताया क्या गलती की थी, उसने फिर और काफी ऐसे लिखे, लेकिन उसमें एक फीडबैक पे उसके और 2 साल गए। फिर ऐसे को नेक्स्ट बेंच को गया, ऐसे लिखा और कॉल किया। जैसे बाहर आया, कॉल आया कि सर बहुत अच्छा ऐसे हुआ पेपर। तो मैंने पूछा कौन सा टॉपिक लिखा। वो बंदे में इतनी ह्यूमिलिटी थी ना, और फीडबैक पे काम करना, लोगों की बात सुनना, टीचर की। मोस्ट ऑसम स्टूडेंट। ओके, तो उसका एक ही स्टेटमेंट था, ये सेड कि सर पहले मैंने ये चेक किया कि यहां इसमें ऑप्शनल के ऐसे टॉपिक कौन से हैं, और जो ऑप्शनल के ऐसे टॉपिक थे ना वो मैंने काट दिए। बोला ये लिखूंगा ही नहीं, कुछ भी हो जाए। पॉल साइंस के ऐसे लिख के बहुत 2 बार मेरे अटेम्प्ट गए हाथ से, इस बार मुझे वो रिस्क ही नहीं लेनी। और उसने जीएस का ऐसे लिखा, पॉल साइंस अपना ऑप्शनल का ऐसे रिलेटेड ऐसे छोड़ के। अब जब उसने ये बात बताई ना, आई न्यू ये बंदा इस साल थ्रू आउट पोस्ट निकालेगा, क्योंकि 3-4 साल से वो पढ़ रहा था, जीएस पे बहुत अच्छा कमांड था। वो जीएस का जो भी ऐसे लिखेगा वॉज गोइंग टू बी द बेस्ट। और यही उसने फिर किया। और मैं दिल्ली में क्लासेस ले रहा था, और उसका इंटरव्यू का कॉल आया, वो दिल्ली आया मॉक प्रिपेयर करने के लिए। तो मैंने उसको बोला कि मेरे साथ ही आके रह ले, वो राजेंद्र नगर में एक होटल है मेडोना, आई वॉज स्टेइंग देयर। वो आके वहां पे मेरे साथ रह रहा था, और जब वो मेडिटेट कर रहा था रात को, मैंने उसका एक फोटो निकाला, और जैसे यूपीएससी का रिजल्ट आया मैंने वही स्टेटस पे फोटो डाला, और यही लिखा था मैंने कि ये बंदा जब इंटरव्यू के लिए दिल्ली आया था, मेरे साथ रह रहा था, आई न्यू मुझे फोटो लगने वाला है इसका, इसलिए मैंने इसका एक फोटो निकाल के रखा था कि मुझे अगले महीने ये फोटो लगने वाला है। और ही क्रैक्ड इट, ही इज आईपीएस नाउ इन बंगाल कैडर, महाराष्ट्र का ये मतलब स्टूडेंट, बट द बंगाल कैडर। सो पॉइंट इज, ये जो एबिलिटी है ना उसके पास, फीडबैक। तो जितने फीडबैक, अगर फेल हो रहे हो ना फीडबैक लो, ओके, खुद ही कुछ ट्रायल एंड एरर मत करते बैठो, टीचर के हमेशा टच में रहो। तो ऐसी बहुत सारी स्ट्रेटेजीज है, अभी मैं कुछ थोड़ी बहुत आपको बता रहा हूं, बिकॉज आपका क्लास अभी स्टार्ट हो रहा है, कोचिंग प्रिपरेशन। तो इंपॉर्टेंट चीज है, ये पीडीएफ भेजूंगा मैं, खुद हाथ से लिख के ये सारे पॉइंट नोट डाउन कर लो। और आप जहां प्रिपेयर कर रहे हो ना, टेबल पे चिपकाओ ये सारे पॉइंट्स जो अभी तक बताए, कंटिन्यूसली इनको देखते रहो, माइंड में रखो, एंड प्रिपेयर एंड स्टार्ट योर जर्नी विथ ऑल दिस पॉइंट्स इन माइंड। ओके, एंड उसके बाद एनालिसिस ऑफ सिलेबस, पीवाईक्यूज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको किस तरह से पढ़ना है। फॉर एग्जांपल मैंने अभी बताया आपको, यूपीएससी ने पीवाईक्यूज क्या पूछे हैं कि विच आर बुद्धा's thoughts are applicable to the society today, which are Gandhi's thoughts are applicable to society today, which are Guru Nanak's thoughts applicable to society today। अब पॉइंट क्या है ना, ये पढ़ के आपको समझ में आया कि पीवाईक्यू क्या आया, इसका एनालिसिस मतलब क्या। अब इसका एनालिसिस क्या करना है कि भाई बुद्धा पे फिर से सवाल नहीं आएगा, गुरु नानक पे सवाल नहीं आएगा, लेकिन इन दोनों पे सवाल आए तो आपको महावीरा पे सवाल बन सकता है, ज्ञानेश्वर महाराज पे सवाल बन सकता है, कबीर तुलसीदास पे सवाल बन सकता है। और वो भी बनेगा तो सवाल कैसे बनेगा कि भाई कबीर जी और तुलसीदास को मत पढ़ो, आदि शंकराचार्य रामानुजाचार्य को के थॉट्स को मत पढ़ो, उनके कौन से थॉट आज एप्लीकेबल होने वाले हैं, आज की सोसाइटी को रिलीवेंट है, ये सोच के पढ़ो। ये आपको करना होता है। तो कोई भी टॉपिक पढ़ाने से पहले, मैं भी जब इथिक्स पढ़ाऊंगा ऐसे पढ़ाऊंगा, आपको पहले पीवाईक्यूज दिखाऊंगा। ओके, इंडियन सोसाइटी पढ़ाऊंगा पीवाईक्यूज, सारे टीचर यही करेंगे, पहले आपको पीवाईक्यूज दिखाएंगे क्लास में, किस तरह से क्वेश्चन आ रहे, ट्रेंड क्या है, कितने मार्क्स के क्वेश्चन बन रहे कौन से सेगमेंट में, उसका एनालिसिस हम क्लास में भी करवाएंगे, आपको भी खुद करना है।
सो ऑटोमेटिकली फिर आपको समझ में आएगा ये सिलेबस में यूपीएससी क्या सवाल पूछ रहा है, कितने मार्क्स के लिए पूछ रहा है, मुझे किस तरह से पढ़ना है, और दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट आपके इसमें। एंड उसके बाद ये पॉइंट मैंने पहले ही बताया था, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। जब यूपीएससी पढ़ रहे हो ना तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस मतलब क्या कि आप जो भी टाइम दे रहे हो प्रिपरेशन में, हमेशा ये सोचो कि मैं जो भी पढ़ रहा हूं उसका यूटिलिटी कितना है। बिगिनिंग में मैंने आपको बताया इथिक्स पेपर में 140-150 मार्क आते हैं, एसे में 140-150 आते हैं, और पढ़ना कितना है, एसे का क्लास 60-70 आवर्स, इथिक्स का क्लास 70-80 आवर्स, 2 क्लासेस 2 किताबें 250-250 मार्क के पेपर है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इतना वास्ट 6-7 क्वेश्चन आएंगे। तो मैं कहां पे मुझे अपनी एनर्जी चैनलाइज करनी है, कहां नहीं करनी, कौन से पेपर को कितना वेटेज है वगैरह। सो फॉर एग्जांपल जीएस पेपर 1 में मैंने क्या बोला, देयर आर 3 सब टॉपिक्स। हिस्ट्री में भी 4 सब टॉपिक, वर्ल्ड हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, आर्ट एंड कल्चर, एंड ये आपका मॉडर्न इंडिया। और 4 इस पे आपको सवाल कितने आएंगे, सिर्फ 1-2 करके 6 क्वेश्चन। 4 किताबें पढ़ के 6 क्वेश्चन, इंडियन सोसाइटी का 1 किताब 6 क्वेश्चन। जीएस पेपर 2 में साइंस एंड टेक, आपको साइंस एंड टेक का जो मैगजीन होता है आपका, पूरे 12 महीनों के 12 मैगजीन, हर मैगजीन में 6-7 ये आएंगे आपको, 6-7 व्हाट डू यू कॉल क्वेश्चंस, सॉरी पेजेस। 12 मैगजीन में 6-7-10 पेजेस, 12 महीनों के 10-10 पेजेस, 120 पेजेस साइंस एंड टेक के, आपको आएंगे 6-7 क्वेश्चन। सेम वे इंटरनेशनल रिलेशन पेपर 3 का पार्ट है, इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनल सिक्योरिटी, ये जो टॉपिक्स है 12 महीने के मैगजीन में, हर करंट अफेयर का जो मैगजीन है 10-12 पेजेस होंगे इंटरनेशनल रिलेशन के, 10-12 पेजेस होंगे इंटरनल सिक्योरिटी के, 10-12 पेजेस होंगे साइंस एंड टेक के। तो टोटल पूरे साल में आपको इंटरनल सिक्योरिटी के टोटल पेजेस कितने होंगे, 150 पेजेस। 150 पेजेस पे 6 क्वेश्चन, इंटरनेशनल रिलेशन के 150 पेजेस 6 क्वेश्चन, साइंस एंड टेक के 150 क्वेश्चन 150 पेजेस 6 क्वेश्चन, इंडियन सोसाइटी के सारे नोट्स पढ़ो 200 पेजेस 6 क्वेश्चन। आपको ये जो पार्ट है फिर 150-200 पेजेस पढ़ के मेरे 6 क्वेश्चन बन रहे हैं, और हिस्ट्री की 4 किताबें पढ़ के 6 क्वेश्चन बन रहे हैं। भाई कॉस्ट बेनिफिट समझना पड़ेगा। आपको हिस्ट्री मास्टर नहीं करनी, आपको पोस्ट निकालनी है, जहां मार्क आ रहे हैं वहां पे पढ़ो। ओके, फोकस ऑन दैट पार्ट। और ये सारी चीजें, सो 33% कोचिंग, रेडीमेड लो, सारी चीजें समझो, कंसिस्टेंटली पढ़ो, 33% योर हार्डवर्क, और जो भी पढ़ रहे हो प्रिपेयर विद स्ट्रैटेजी, नो डोंकी वर्क। और ये बहुत कम स्ट्रैटेजी बताई अभी, ओपन एंडेड, जो सारे सिलेबस पे अप्लाई होती है। सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज आगे हम देखते जाएंगे एज वी गो अहेड। सो बेसिकली टू कंक्लूड टुडेज सेशन, so if you accomplish something good with hard work, labor passes quickly but the good endures. If you do something shameful in pursuit of pleasure, pleasure passes quickly but shame endures. So prepare hard, prepare well, and as I told you, जो classroom students है, मतलब online offline, you will be having my personal guidance throughout your journey. जो भी आपके issues, doubts हो, so next lecture जो होगा उसमें we will discuss आगे का strategy का part that I will discuss with you. So 4 तारीख को, फिर 4 तारीख को ही सिलेबस का माइक्रो एनालिसिस भी करेंगे, क्या क्या टॉपिक्स है that I will discuss with you. 5-6 तारीख को फिर इथिक्स का डेमो लेक्चर, ओरिएंटेशन लेक्चर होगा, एशियन इंडियन सोसाइटी का डेमो ओरिएंटेशन लेक्चर होगा, एंड अकॉर्डिंगली फिर 9 से योर फर्स्ट सब्जेक्ट एंड टॉपिक विल स्टार्ट। ओके, सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस तो मेरा नंबर यहीं पे आई विल शेयर विथ यू, तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम। सिर्फ क्लासरूम स्टूडेंट्स के लिए आई विल बी अवेलेबल 9552268658। ओके, सो यू कैन, कोई भी डाउट्स एक्सेट्रा आगे भी हो, माय नंबर विल बी अवेलेबल फॉर यू। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग गाइज, एंड सी यू डे आफ्टर टुमारो। टुमारो इज ड्यू टू होली, देयर इज अ हॉलीडे, सो टुमारो क्लासरूम बंद रहेगा, इसलिए कल कोई लेक्चर नहीं होगा। लेक्चर विल बी ऑन 4th।